now. Sorry about that. Okay, it's all right क्योंकि काम की बातें अब अभी ही शुरू हुई हैं. अभी तक तो हम सिर्फ introductions ही कर रहे थे. Right. So international clinical trials are hitting the shores. Why? Because of the regulations in place, and what this allows is कि इसकी वजह से अब हम भी ये क्लेम कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान में उसी लेवल का काम करेंगे जिस तरह दुनिया में कहीं पे भी काम हो रहा है. Another big factor is the dynamics of the national pharmaceutical industry right now. Now, your national pharmaceutical industry was heavily focused, is heavily focused on the generic industry. Almost 80-85% of the current market share is with the national pharmas. Multinationals, the innovators are shrinking and shrinking heavily. Is this a good trend? I will not comment further on it. It's actually not a bad thing if we look at how this can help Pakistan improve its own healthcare infrastructure. Having said that, there needs to be a balance, and we'll talk a little more about that in subsequent slides. And आजकल का जो ब्रेन ड्रेन का जमाना है, especially the youth, the young people, everybody, पूछें किसी से बात करें जी आपकी क्या एस्पिरेशंस है, हमें बाहर जाना है. कहाँ बाहर जाना है ये नहीं पता. जहां मौका मिल गया, जिन लोगों ने हमें वीजा दे दिया, जिन लोगों ने हमें परमिट, वर्क परमिट दे दिया, वहां चले जाएंगे. वेल आई अगेन इट्स अ लॉन्ग डिबेट. इसके ऊपर हम बहुत सारा टाइम जाया करेंगे कि जी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. ऑफ कोर्स दैट्स again heavily also it also depends on your everybody's personal circumstances. Having said that, अगर यही aspirations आपकी हैं तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा इवेंचुअली बाहर जाके अपने जॉब हंट में, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन क्लिनिकल रिसर्च एरिना. राइट. एक और सवाल जो बहुत सारे लोग हमसे करते हैं, and again something that we wanted to put up in front, is that what does one need to be to become a successful researcher? You need to be tech savvy. Yes, you need to be tech savvy. So yes, I have a comment. Sorry, let me please take a comment साथ में. Mohammed Danish is saying that the national pharmaceuticals boom is economically good for the nation, but our companies' lack of interest in innovation is hurting. Danish, I cannot second this further. This is absolutely spot on. This, in fact, अगर हम देखें अभी कोविड का एरा देखें, कोविड के एरा में one of the industries that really did amazingly well was the pharmaceutical industry, despite तमाम challenges जो कि बाकी industries को थे कि जी plants बंद हो रहे थे, but pharma industry के plants चल रहे थे. Now, national companies का अगर ये जो बढ़ना है, that is very important in general, because of developing our own capabilities. But then that comes with a lot of innovation requirements. This is one area, one clear room for improvement. दानिश, मैं अगेन इसमें एक कमेंट और आपसे प्लीज ये जरूर शेयर करूंगा कि when I joined the industry back in 2007 2008, उस जमाने से लेके अब तक I think on this innovation front as well, there has been a significant improvement. There has been a lot of there has been a clear difference in the approach of national pharmaceutical industries in manufacturing, and that has helped Pakistan significantly, especially when you look at the export business that Pakistan pharma industry is doing. So ये एक अच्छी चीज है, एक खुशाइन चीज है हमारे लिए. मैं भी इसको बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, इसको मैं सेकंड करता हूं. Right. So what do you need to do to become a successful clinical researcher? Well, you need to be टेक सैवी. बहुत सारे लोग ये कहते हैं. आजकल का जमाना बिल्कुल ऐसा ही है. हर चीज पेपर फ्री, पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ हर कोई मूव कर रहा है. और विच मीन्स कि आप लोगों को अगर आप लोगों को कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर से कोफ्त आती है तो फिर शायद बेहतर होगा कोई और फील्ड देख लें. लेकिन हैविंग सेड दैट,
आई नो कि मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मैं किसी और की नहीं, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं इधर. सो माय 14-year-old and my 13-year-old girls make me feel like a caveman when I sit with them. कोई भी किस्म की जब वो, मैं उनके साथ कोई वीडियो गेम नहीं खेल सकता. देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज स्पॉट ऑन. और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मैं मेरे घर में ही मेरे भांजे का जो बेटा है, ही इज 2 years old. हम उसको और मेरी बेटियों को आपस में कंपेयर करते हैं. दे हैव कंपेरेबल हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल्स. आजकल की जनरेशन के अंदर ये पता नहीं, एक आप लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई सी अ लॉट ऑफ जेन जीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. यू जेन जीज आर इनक्रेडिबल व्हेन इट कम्स टू टेक सेवीनेस. हैविंग सेड दैट, ये अकेली चीज काफी भी नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट डीलिंग विद सॉफ्टवेयर एंड वी आर नॉट लाइक वी आर नॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज थिंग्स. ये एक बहुत बड़ा प्लस प्लस जरूर है आपके लिए, आपके करियर में. आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड अगर आप हैं, इसका एक क्लासिक इंडिकेटर आपका अपना डेस्क या टेबल जो भी आपका है, बी इट द वर्क डेस्क और आपके घर का आपका स्टडी टेबल, अगर वो अच्छा सा ऑर्गेनाइज, उसके अंदर किताबें पाइल अप हुई हुई, नोट्स अच्छे से साइड पे पड़े हुए, पेंसिल्स जो है वो पेंसिल के बिन के अंदर डली हुई, पेंसिल का शार्पन किया हुआ कचरा जो है वो डस्टबिन में गया हुआ और टेबल के ऊपर बिखरा हुआ ना हो, आप रिसर्च फील्ड में के लिए राइट बंदे हैं. क्योंकि रिसर्च में आपको बहुत ऑर्गेनाइज होना होता है. हैविंग सेड दैट, मुझे खुद अपने टेबल की, काश मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा सकता आज से चंद सालों पहले. मेरे टेबल ऐसे बिखरे हुए होते थे कि मुझे खुद कोफ्त आ रही होती थी कि या अल्लाह मैं अब इसका करूं क्या. मैं बाकायदा एक पूरा दिन लगाता था. कभी मेनी टाइम्स आई हैव डन दिस इन माय जॉब्स, कि किसी वीकेंड जाके मैं सिर्फ जाता था ऑफिस और जाके टेबल साफ करके आता था कि मैं अगले हफ्ते से मैं थोड़ा सा बेहतर काम कर सकूं. यू कैन लर्न टू बी ऑर्गेनाइज एज वेल एज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अभी नहीं है तो होना शुरू हो जाए. You should have good problem solving skills. Again, ये this comes with the passage of time and again something के जो के um, एक approach to come up with solutions rather than chalking out problems. लोगों का एक हमेशा मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज को भी मैं हमेशा यही बात करता हूँ. आप जब मेरे पास कोई बात लेके आते हैं तो आप मसले 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 ना बताया करें. आप मसला बताएं और उसके बाद उसका एक हल प्रपोज करें, देन सो दैट वी कैन हैव सम इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन ऑन द प्रॉब्लम्स. द सेम अप्रोच नीड्स टू बी अप्लाइड टू क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. आप अगर सोलो प्लेयर हैं, आपको अकेले काम करने में मजा आता है, तो क्लिनिकल रिसर्च में बहुत मसले होंगे आपको. इसलिए क्योंकि यू नीड टू बी अ गुड टीम प्लेयर. There is always a team involved when you talk of clinical trials, especially big international work. You've got different stakeholders. हमारा एक पूरा सेशन 3 घंटे तक हम सिर्फ इस पे बात भी करेंगे इंशाल्लाह. I think the 6th or the 7th session, जिसमें तलाल is just going to talk about the different stakeholders of clinical research. So ये टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा रिसर्चर बनना है. And of course, you need to have that tendency to have clear communication skills. सादा जबान में बात करें, सिंपल बात करें और लिख के बात करें. जो बात बोली हुई है वो बात कभी हतमी नहीं होती. Develop a habit to document what you want to say and keep it simple, keep it straight. ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा क्लिनिकल रिसर्च में. ये सारे स्किल्स तो ठीक है. One thing is absolutely mandatory, and that is एक सच्चे सीधे साधे दिल वाला बंदा, इंटेग्रिटी के साथ काम करने वाला बंदा क्लिनिकल रिसर्च में बहुत सक्सेसफुल होगा. बिकॉज दिस टू मी ओवरवेज एवरी अदर एट्रीब्यूट. आपके पास पुरानी पीछे वाली ये सारी चीजों में आप मास्टर हो,
but you don't have the integrity to come up, or the courage to be able to say that, yes, I have made a mistake, or yes, this is a result that we were not expecting, but this is how it is. ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप बाकी तमाम चीजें जो है वो बाद में अक्वायर कर लीजिएगा. This is a mandate. Right. So, before I move to the next session, next chapter, I'll take a pause. मैं बोलता रहूंगा, please मुझे रोकिएगा बीच में अगर आप लोगों को कोई सवाल आता है या कोई comment. But now let's also take a pause to see if there are any questions, any queries, any comments on what we have discussed so far. हाँ जी. थैंक यू. सॉरी, आपका नाम? आशीर. आशीर ने कहा ओके है. सो थैंक यू सो मच, बिकॉज यस, अभी तक हमने शायद कोई इतनी टेक्निकल बातें नहीं की, हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें की हैं. बट ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी अगर एक सिर्फ ओके लिखा हुआ मेरे पास आ जाएगा. नो क्वेश्चन स्टिल येट. थैंक यू सो मच. युसरा, all is good, so well, all good, thank you. Okay, and we got the okays. अच्छा, why I'm doing this, because अभी तक हम कोशिश यही करेंगे, अभी तो हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है, बट moving on, especially for the online participants, thank you so much, thank you. For the online participants especially, please, हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोगों के जहन में, आप लोग की शक्लें हमें नहीं नजर आ रही होती, तो हमें जरूर रोक लिया करें अगर कहीं पे आपको कोई बात क्लियर करवानी है. that will make. Thank you so much, all good sir. Okay, on that note, let's come to the next section, and which is introduction to the pharmaceutical industry, drug discovery and development. Right. Now, when we talk of drugs, the definition of a drug is again something जो कि मैं यहाँ पे. Thank you so much, Danish. After 12, oh my, okay, 12-hour long night shift. Danish, we'll try our best to keep this as interactive as possible ताकि आपको जगाते रहें हम. नहीं, thank you so much for attending this. I'm, we are really honored for this. Okay, so any substance, again, please allow me to read this definition. Any substance, a little more under DRAP. Mavish, please, मैं इस क्वेश्चन को, अगर हम एक पार्किंग लॉट भी बनाते होते हैं अपने इन सेशंस में, इसको हम अगर पार्किंग लॉट में ले जाएं, बिकॉज इसके ऊपर मैंने जिस तरह मैविश बोला था कि पूरा एक 3 घंटे का सेशन है इन्हीं बातों के ऊपर. What are the different regulations? How have these rules in DRAP, in HEC, in CPSP changed? ये इसके ऊपर आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो प्लीज अलाउ अस टू शेयर दैट विद यू इन द थर्ड सेशन. आज हम बहुत बुरी तरह डिट्रैक्ट हो जाएंगे अगर हम आज इनके ऊपर बात करना शुरू हो गए. I hope that's all right with you, Mavish. Right. So please allow me to read the definition as it is. WHO की definition है, और ये मुझे ये definitions बहुत बुरी लगती हैं, because इस बहुत अजीब अजीब किस्म के मुश्किल अल्फाज जो हैं इन्होंने हमेशा कंपाइल किए हुए होते हैं. लेकिन इसमें से जो काम का एब्स्ट्रैक्ट है इस डेफिनेशन में से, ड्रग क्या है? व्हाट इज अ ड्रग? It is any substance or a mixture of substances which are manufactured, sold, offered for sale or represented for use in. फिर आगे बहुत सारी वर्ड्स थे, वो मैंने हटा दिए ताकि हम सिंपल रखें बात को. In the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease, abnormal physical state or the symptom thereof in a man or animal, and for use in, again, blah blah blah, restoring, correcting or modifying organic functions in man or animal.
मैंने जैसा कहा मुझे डेफिनेशंस बहुत बुरी लगती हैं, क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद ये जुमला पूरा पढ़ा और मेरे जहन में चंद वर्ड्स इसमें से रजिस्टर हुए. What is the crux of the meaning here? Drug by definition will be something that is ideally manufactured, right? या आप synthetically manufacture करेंगे. अच्छा, हो सकता है कि जड़ी बूटियां भी तो ड्रग्स होती है ना, वो तो मैन्युफैक्चर नहीं करते हम, कि वो हम जड़ी बूटियां हम उगाते हैं, बट हम किसी प्लांट के थ्रू, लेकिन नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं. लेकिन उसको भी किसी ना किसी फॉर्म में अगर आपने रिफाइन कर दिया, उसका सिर्फ अर्क निकाल दिया, उसको सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया, उसको ड्राई आउट करके, उसको कूट के पाउडर बना के आपको किसी फॉर्म में पैक करके दे दिया, that medication then becomes a drug. So drug versus medication is an important concept to understand. Now drug, again drug word आता है तो बहुत सारे और मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स आजकल बहुत आम है, बहुत सारे नेटफ्लिक्स के शोज भी जहन में आते होंगे सबके. ब्रेकिंग बैड देखा है? सब नहीं देखा होगा. वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग शोज ऑन नेटफ्लिक्स एवर. नहीं देखा तो जरूर देखें, इट्स एन अमेजिंग शो. लेकिन उसके अंदर जो ड्रग्स, उन जो हम डिजाइनर ड्रग्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे. ड्रग्स as a rule are substances other than food which can have a physiological effect when ingested or otherwise introduced, right? So ये इंपॉर्टेंट है कि एक ड्रग, स्पेशली अगर हम ड्रग्स ऑफ अब्यूज की बात करते हैं, तो वो भी बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को इनहैंस या इनहिबिट कर रही होती. हमारा भी ड्रग्स का मकसद यही होता है, जब व्हेन वी आर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, कि उससे हम बॉडी के नॉर्मल किसी प्रोसेस या बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर कोई ऑल्टरेशन कर दे. A drug becomes a medication when your intention is कि किसी पैथोलॉजी को खत्म करें, राइट? मैं बहुत बेसिक सिंपल सी बातें कर रहा हूं. कुछ लोग शायद अभी हंस रहे होंगे घर पे बैठे हुए या यहाँ पे भी दिल में, कि ये हमें मतलब हम ये क्लास 8 क्लास 9 की बातें क्यों पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे. तमहीद बांध रहे हैं ताकि आगे के ये टर्मिनोलॉजीज फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही होंगी. Let's not mix drugs and medications in future for the next 11 weeks, right? Now, when we talk of drugs, we say that they can be classified in many ways. Pharmacology की किताबों ने हम सबको haunt किया हुआ है अपने अपने academic careers में, in one way or another. जी, एक ही दवा के कभी आप उसको केमिकल ग्रुप के नाम उसके याद करने होते हैं, फिर उसकी फार्माकोलॉजिकल नाम याद करना होता है, फिर इस पे खत्म नहीं हुआ सितम तो इंतहा होती है कि अब नहीं, अब आप इसका थेरेप्यूटिक जो इंडिकेशन के हिसाब से इफेक्ट के ऊपर जो उसको नाम या कैटेगरी दी गई है वो भी याद करें. अक्सर जो है वो मतलब एक बहुत फनी मीम अभी किसी ने भेजा था कि जी कंज्यूमर्स, एक वो दो बोर्ड लगे हुए थे, एक जगह पे लिखा हुआ था एस्प्रिन, एक जगह पे लिखा हुआ था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और सामने जो है वो बहुत सारे लोगों की जो है वो एक भरमार, एक क्राउड था, जो पूरी क्राउड था वो एस्प्रिन की तरफ लाइन लगा के खड़ा हुआ था कि जी हमें एस्प्रिन चाहिए. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड वाला बंदा जो है वो बैठ के सबकी शक्लें देख रहा था कि यार मेरे पास भी आ जाओ, मेरे पास भी यही चीज है. नाम बहुत मैटर करता है इन ड्रग्स, and the same name the whole sorry, so any API that can adhere the normal physiology and pathology of a body. Dr. Mohammad Ahmad Khan, thank you so much for saying this. नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हैं. What's an API? API is an active pharmaceutical ingredient. Sir, pharmacologically, drug and medication both will add physiological impact. Yes, 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 and yes. Thank you so much for adding this comment. But yes, basically,
एक्टिव, अगर मैं वापस अहमद के कमेंट के, अहमद ही थे, अम्माद, सॉरी, अम्माद के कमेंट पे आऊं। अम्माद ने लिखा हुआ है कि एनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट that can adhere the normal physiology and pathology of a body is a drug. Well, yes, हम शायद यही बात थोड़ी सी सादा जबान में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज हम यही बात कहना चाह रहे हैं। यस रामीन, दैट इज द होल पॉइंट कि हम जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट। सो कमिंग बैक टू अमाद्स पॉइंट कि हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इट बिकम्स देन एन एक्टिव एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मैन्युफैक्चरिंग विद दिस इंटेंशन कि इससे कोई डिजीज ट्रीट करनी है बिकम्स अ मेडिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग विद दिस इंटेंशन के इससे कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इनहैंस या इनहिबिट करना है बिकम्स अ ड्रग। ऑल मेडिकेशंस आर ड्रग्स, ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिकेशंस। आई होप ये इस बात को अब बिल्कुल क्लियर कर देगा, राइट? ओके, so what we were talking about is the classification of drugs. It is important to have all the classifications categorized for you for your research whenever you are jumping into something new. हम खास तौर से यहाँ पे बात कर रहे हैं नए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर करने की, नई ड्रग्स या फॉर दैट मैटर मोस्टली नई मेडिकेशंस बनाने की। And in that, this classification is imperative for not just the label of the investigational new drug, but also for us to understand the future implications of the research that we are doing. So, माजरत के साथ ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये classification के nomenclatures and terminologies. This is something that is going to again, and with the passage of time, फेमिलियराइज हो ही जाते हैं। मेरे जैसा बंदा, आई यूज टू हेट फार्माकोलॉजी, मेरा माय वर्स्ट सब्जेक्ट, एंड आई एब्सोल्युटली हेटेड इट, क्योंकि उसके अंदर कोई, मुझे लगता था, कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रट्टे लगा लो। अब मुझे लगता है शायद मैं गलत था उस वक्त, मैं अब शायद थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। बट यस, this is exactly what I'm trying to say, कि ये they all start to fall in place and start to make sense once you get into a deep dive into the names and into the practicalities of the nomenclatures, right? So pharmaceutical industry या company, फिर कौन सी company होगी which is licensed to discover, develop, market and then eventually distribute the drugs. सो हिस्टोरिकली एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या एक कंपनी अपने आप को फार्मास्यूटिकल कंपनी उस वक्त कह सकती है व्हेन दे आर, इफ दे गेट अ लाइसेंस टू डिस्कवर एंड डेवलप या फिर मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग्स, राइट? या फिर चारों एक साथ। इन चार वर्ड्स को याद रखिएगा, ये चार वर्ड्स हम आगे अगली स्लाइड पे अब इस्तेमाल करने लगे, इसके बाद वाली स्लाइड पे, सॉरी। ओके, बट अगेन गोइंग बैक, कंपनीज that can discover, develop, market and distribute the drugs are pharmaceutical companies. सिंपल सी बात। अब इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर हम एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं तो जी, मोइंजोदाड़ो के रूइंस में से भी हमें वो वाले वो हांडली दस्ता कहते हैं ना उसको, वो जो वो कूटने वाले वो मिले थे जिसके अंदर जड़ी बूटियां कूटी जाती थी। वो भी उस जमाने में अगर किसी एक कमरे में हो रहा था तो उस कमरे को हम कह सकते हैं कि वो वहां की फार्मा थी। फार्मा हैज बिन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन since we have found the ruins. We don't know what happened before that. Probably उससे पहले भी पत्ते आइडेंटिफाइड थे वो वाले होमोसेपियंस के, कि कौन सा पत्ता खाने से कौन से सांप के जहर का जो है वो एंटीडोट हो जाएगा। That's also pharma. So हमारे पास एंशियंट सिविलाइजेशन से ये वाले ट्रेंड्स, obviously we know. So the use of quinine, cupric sulfate and what not, peppermint, opium,
ये सारे अभी खास तौर से आजकल भी अभी टू डेट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हमारी यूनानी तिब और हकीमी तिब जो है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट बाय द वे, बिकॉज आई नो दैट दोज थिंग्स वर्क. हाउ दे वर्क इज अगेन समथिंग. कभी किसी हकीम से पूछेंगे कि जी ये दवा, ये आपने मुझे जो दी है चीज, ये कैसे काम करती है, तो उनके बड़े मजे के जवाब होते हैं कि तासीर गर्म थी या तासीर ठंडी थी. वो आज तक मैं टू डेट इन सवालों के जवाब जब मुझसे लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ये, क्योंकि अब समझते हैं कि एक डॉक्टर आ गया है सामने, तो उससे पूछो ये हम जो खाना खा रहे हैं इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है. तो भाई माजरत के साथ मुझे नहीं पढ़ाया गया ये कभी भी मेरी इतने सालों की एजुकेशन में, कि किस चीज की तासीर ठंडी होती है और किस चीज की तासीर गर्म होती है. But there is an art behind it, and there is, well, sorry, not an art, there is a science behind it. And that science is something that has kind of been the start of pharmaceutical industry way back from the ancient civilizations. Um, yes, thank you, Manager Drugs and CRRA. Um, आप अपना नाम भी प्लीज बता दें हमें. अजीब सा लगेगा आपको बार बार मैनेजर ड्रग्स एंड CRRA पुकारना. आई टोटली. डॉक्टर नाजिश, हाउ आर यू डॉक्टर नाजिश, कैसी हैं आप? आई नो डॉक्टर नाजिश. Okay, so Dr. Nazish totally agrees with alternative medicine and their work. Same, I was having a conversation with Hakeem. He told me the same Taseer thing. Welcome to the course, Dr. Nazish. Privileged to have you. So yes, the same thing. हमें और हम अक्सर as medical professionals, as pharmacists, as dentists, or even as someone who just understands the basic terminologies of biosciences, ये ठंडी और गर्म तासीर वाली बातें समझ नहीं आ रही होती, but we know that these alternative medicines work. अच्छा, इस हिस्ट्री को थोड़ा सा अब ऑब्वियसली आगे बढ़ाएं कि ठीक है एंशिएंट सिविलाइजेशंस में हो रहा था, तो इंडस्ट्री कब शुरू हुई. व्हेन वी लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा, द फर्स्ट फार्माकोपिया, नाउ फार्माकोपिया इज के पहली एक ऐसी किताब बनी जिसके अंदर तमाम दवाओं को अल्फाबेटिकली एक जगह पे जो है वो जमा कर लिया गया. So we can date it back to 1546. So the 16th century is when we can say that we started to make collections of lists of drugs. So this first came in Germany. But then Europe में इसके अंदर significant advancements हुई during the 16th, from the 16th century to the say 19th century, 1841 तक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट यूरोपियन रीजन ऑफ द वर्ल्ड में हुई थी. एंड फार्मेसी एज अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशन, अगेन किंग जेम्स द वन. आई डोंट नो आप लोग कितना यूके की हिस्ट्री से फेमिलियर हैं. किंग जेम्स द वन इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. पढ़िएगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्यों एक राय सी स्माइल दे रहा हूं. लेकिन किंग जेम्स द वन साहब के लिए ये क्रेडिट है कि ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड फार्मेसी एज अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशन. एंड अगेन उसके कोर्ट में उसने एक अलग जो है वो अपने उस जमाने के हकीमों के लिए एक जगह अलग बनाई. दैट टू अस इज स्टार्ट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन. And then there were proper trainings of pharmacists, eventually in 1840s. And we then started to develop a science out of this art, right? It was हमेशा वो art और science में again क्या जो एक main फर्क है वो ये है कि जी science is based on facts. So we know कि जी ये x plus y is going to give you z. ये science है. आर्ट ये कहता है कि जी x plus y can probably give you something which is very beautiful, which has which has a gleaming color and a sparkling shine. z बोल दो यार उसको, वो z है. ये फर्क था हकीमी अप्रोच में बिकमिंग
pharmacopoeia, and eventually pharmacy. I hope this makes sense for the example that I gave you. Right. Coming to the modern pharmaceutical industry, जो industry जिसको हम आजकल अभी पीछे हम जिसकी बात कर रहे हैं कि जी companies that discover, develop, market and distribute the drugs. ये industry की history, the recent history, when we look at it, the first aspirin tablet was manufactured in 1915. And this was a game changer. पहली दफा आपने किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू कोई दवा बनाई, इसका मतलब इसके implications and repercussions on the humankind, this completely revolutionized the हकीमी फील्ड. उनके ऊपर एक कंपटीशन आ गया. 1928 was again a major breakthrough year for humankind. Why? Because पहली दफा हमने एक एंटीबायोटिक बना दी, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन कैसे बनी, ये एक बहुत मजे की कहानी है जो मैं अभी आपको एक छोटे से कार्टून क्लिप में दिखाऊंगा. And that was the main crux of all the discoveries in the earlier phase of pharmaceutical industry as well. You'll have a look at that video. Anyway, after the Second World War, we first synthetically manufactured penicillin. टिल देन अब 1928 से 1946 एक लंबा अरसा लगा कि जी डिस्कवरी के बाद उसको इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करना. क्यों? क्योंकि यूरोप बीच में जंगों में और खाना जंगियों में लग गया. दुनिया की सबसे बड़ी तबाही चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी. तो सारे जितने R&D थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेसेस, वो अनफॉर्चुनेटली बेहतर से बेहतर बुलेट और बेहतर से बेहतर बॉम्ब बनाने के ऊपर फोकस हो गए, दवाओं को पीछे छोड़ दिया. 1945 में जब जंग खत्म हुई, हमने आधी दुनिया तबाह कर दी. उसके बाद हमें ख्याल आया 28 में हमने कोई पेनिसिलिन भी डिस्कवर की थी, उसको अब क्यों ना अब उसको उस फैक्ट्री में जो है मशीनें चेंज कर दें, जहाँ पे पहले हम बुलेट्स बना रहे थे तो उसको रिप्लेस कर दिया कि अब वहां पेनिसिलिन बनाएंगे हम. बट ह्यूमन काइंड डिड नॉट लुक बैक फ्रॉम हियर. Since the first synthetic manufacturing of penicillin, there was a significant influx in the R&D of pharmaceutical industry. 1955, we made our first polio vaccine. Again, very strong, significant milestone for humankind, क्योंकि पहली दफा अब कोई ऐसी चीज बना दी हमने कि हम फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होने देंगे. वैक्सीन्स, राइट? प्रिवेंटेबल वैक्सीन्स का, प्रिवेंटेबल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया. 1970s again was a milestone in this whole journey, because अब हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक समझ आना शुरू हो गई. अभी तक तो हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करते थे और हम इधर उधर ढूंढते फिर रहे होते थे, रैंडम गेसिंग के ऊपर काम चल रहा होता था, तुक्के मार रहे होते थे. अब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने सेल के इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना शुरू किया और उसके बेसिस के ऊपर अपने टेक्निक्स डेवलप करना शुरू किए, हाउ वी कैन मॉडिफाई द डिजीजेस. ये वाला मॉडिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का कॉन्सेप्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के 70s के एरा में आना शुरू हुआ. एंड इवेंचुअली सेल कल्चर्स के थ्रू चीजें बनाना कि जी यहाँ पे नौजुबिल्ला वो लोग, वो जो कहते हैं ना, इंसान अब खुदा बनने की कोशिश करना शुरू हो गया. तो वो वाला एडवांसमेंट वाज अगेन, if you ask me when did that start, I will pinpoint it to this particular milestone 91 में, जब हमने पहले टेक्सोल कंपाउंड्स सेल कल्चर से बनाना शुरू कर दिया. So thank you so much, Jalil, for asking. Taxol compounds क्या होते हैं? Taxol compound is a chemical structure. Taxol, for the sake of simplicity में अगर कि एक chemical structure ऐसा जो कि mimic कर सके आपके body के अंदर enter होने में body के actions, right? I hope
थोड़ा सिंपल कर दिया। आई डोंट नो कितना और सिंपल मैं अभी कर सकता हूँ इसको और। राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द clip that I was mentioning about the discovery of penicillin. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज 1 मिनट मुझे इस बात के लिए आपका चाहिए होगा, वेदर यू कैन सी द स्क्रीन एंड हियर द वीडियो प्रॉपरली। हमें एक बस प्लीज थम्स अप दे दीजिएगा। राइट, आई एम प्लेइंग इट। Having been brought up on a farm in Scotland, scientist Alexander Fleming wasn't afraid of getting his hands dirty, examining nasty bacteria like Staphylococcus aureus, which in humans, as well as horses, can cause death, as well as vomiting and boils. One day in 1928, Fleming came back from his holidays. He found some cultures of the Staphylococcus aureus bacteria, which he'd meant to throw away, had died. But instead of throwing them away, he stopped to think, what might have caused some of his sample to die and the rest to live? After a lot of time and effort in his lab, Fleming worked out that some of his sample had been contaminated by a particular fungus, which he then managed to grow himself. As an ex-soldier in World War I, he'd seen hundreds of soldiers die due to bacterial infection, and he figured that if fungus could kill bacteria on his bench, it might also kill bacteria in wounded soldiers. And he was right. Having renamed his mold juice penicillin, it was ready for public consumption in time for the next war on D-Day. Penicillin has saved the lives of millions of people and horses. But due to overuse, some bacteria is becoming resistant, and methicillin-resistant Staphylococcus aureus is now widespread among humans, known by its more popular name, MRSA. राइट, छोटा सा क्लिप, बट टू गिव यू दिस आइडिया कि जी डिस्कवरी हो कैसे रही थी उस जमाने में। ओके, एक्सीडेंटली लैब में एक पेट्री डिश छोड़ दी गई और उस पेट्री डिश की वजह से के अंदर बैक्टीरिया स्टैफ ऑरियस पड़ा हुआ था। वो स्टैफ ऑरियस मर गया खुद ब खुद। अच्छा जी, मर तो गया, लेकिन उसके बाद उसको आइसोलेट करके उसको एक ड्रग की शक्ल देना वाज अगेन समथिंग के जिसके ऊपर which was probably the first step towards us saying कि अब हम diseases को eliminate करने की कोशिश करेंगे। Aspirin उससे पहले बनी हुई थी, and then there were a few other drugs of course in the market that had been manufactured, लेकिन कोई भी चीज जड़ से खत्म करने के लिए बीमारियों को नहीं थी। As penicillin, was the first step towards it. And this is why this is considered to be one of the biggest milestones in the history of mankind. तो क्या हुआ कि वो एक एक्सीडेंट था। But moving towards the current pharmaceutical industry now, आजकल का ट्रेंड, आजकल क्या हो रहा है? Now there are two major broad categories that we have. There are innovator companies. इनोवेटर कंपनीज अगर हम सादा जबान में बोलें तो आजकल की मल्टीनेशनल कंपनीज, एक कंपनी कहीं किसी यूएस में बेस्ड है या यूरोप के किसी मुल्क में बेस्ड है, वहां की कंपनी दुनिया के हर मुल्क में अपनी एक ब्रांच खोल के बैठी हुई है। मोस्टली इनोवेटर कंपनीज, द बिग फार्मास are the companies that are involved in research and development of new drugs. अच्छा, ये तो मैंने बात की अगर मैं कहूं कि जी टिल लेट 90s अर्ली 2000s इनोवेटर कंपनी सिर्फ बिग फार्माज होती थी, लेकिन जब से ये बायो फार्माज और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो चुकी है, बहुत सारी छोटी छोटी मशरूम स्मॉल इनोवेटर कंपनीज भी आना शुरू हो गई। और
वो कंपनीज बहुत सारे ममालिक में नहीं प्रेजेंट होती वो सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ स्मॉल बायोफार्मास recently in the past couple of decades that are also innovator companies and these companies are basically इनका काम क्या है कोई एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो 50 से 60 लोग मिल के बस इस बात पे जट जाते हैं कि हम इस मॉलिक्यूल को मार्केट तक लाएंगे उसके ऊपर ट्रायल्स करते हैं उसको मार्केट में लाते वक्त देन दे सेल इट टू द बिग फार्मर्स बिकम इंस्टेंटली मिलियनर्स बिलियनर्स अगर कोई बहुत बड़ा छक्का लग गया और जाके बहामास में रिटायर हो जाते हैं I know that, and I'm not joking, but this is exactly the trend. कि एक बस कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया उसको उसके ऊपर 15 साल 20 साल लगाए उसके ऊपर मेहनत की उसको डेवलप किया उसको फाइन ट्यून किया शेप अप किया फेज 3 क्रॉस कर दिया एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस जब मैं हम फेजेस की बात करेंगे फेज 3 क्रॉस किया और बेच दिया और रिटायर हो गए a lot of scientists are doing that it's a great thing for humanity why because this has there is one drug one cure specific yes Danish exactly what I'm talking about and then but then again not all companies will do this of course not all owners will do this पैसे जब आ जाते हैं तो लोगों को फिर थोड़ा सा और होता है कि अच्छा चलो अब एक नहीं दो और बनाते हैं so that's how some small biopharmas are becoming big pharmas but point being innovator company हर वो कंपनी है जो R&D करेगी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी और जो साथ साथ उसको बेसिकली उसको रजिस्टर करवाना थ्रू अ रेगुलेटरी बॉडी means that new molecule is going to be allowed to come in the market and be used in humans on a widespread scale. It speeds up the discovery against those who were trying to discover one drug. Yes, it does, and that is exactly the whole concept of biotechnology companies is just this. छोटी छोटी चीजों को ऐसे बिल्डअप करना कि दे इवेंचुअली हेल्प इन filling up the gaps that we have in the management of say a lot of well known diseases that are here दुनिया भर में अच्छा इनोवेटर कंपनीज का एक और काम होता है और वो ये है कि जी आपने कोई नया कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूव किया है आप कोई नई टेक्नोलॉजी लाए या फॉर दैट मैटर आप कोई नई क्लास ऑफ ड्रग लाए oh Dr. Yumna is saying that the presentation slide is not visible okay sorry let me please let me know if it's visible now can you see it now yes thank you sorry मैंने वो उसके लिए उस वक्त मैंने उसका व्यू चेंज किया था right okay so I was talking about the innovator companies बस यही स्लाइड पे ही हम थे इससे पहले हमने वीडियो ही देखी थी innovator companies again repeating research and development करेंगे किसी नई ड्रग की and then eventually उसको रजिस्टर करवाएंगे ताकि वो मार्केट में आए और फिर मार्केट में आने के बाद द न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग is again comes this onus also falls on the innovator companies because the innovator companies have to make sure कि जो existing जो भी regimens हैं या existing जो भी एक हम कहें कि methodologies हैं of treating any particular disease उसके अंदर इस new concept की एक जगह बनानी है मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो Dr. Ashfaq is with us in the session. Dr. Ashfaq will also completely relate to this example. Because I was reporting to Dr. Ashfaq in Novartis in 2010 11 ka time when Novartis had introduced a new concept of DPP4 inhibitors for diabetes. So we were working together on that new molecule, new concept. डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज जिसका कोई हल नहीं है उसको मैनेज किया जा सकता है उसको क्योर नहीं किया जा सकता
के अपने पर्टिकुलर रेजिमेंट्स बने हुए थे कि जी आप अगर कोई मरीज डायबिटीज के साथ आता है तो उसकी गाइडलाइंस ये कहती थी कि आप सबसे पहले मेटफॉर्मिन दें, उसके बाद आप मेटफॉर्मिन यूज कर लें, तो फिर गाइडलाइंस नेक्स्ट स्टेप पे आती हैं। मेटफॉर्मिन पे अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर आप नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के ऊपर आए जिसके अंदर सल्फोनाइल यूरियाज हैं, जिसके अंदर उस वक्त टीजीडीज थे, थायोजोलोडिनिडायोन्स। जलील फिक्र ना करिएगा, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट एक और क्लास ऑफ ड्रग, sulfonylureas, SUs, TZDs, there were a few other, insulins of course were already there. ऐसे में नोवार्टिस एक नया कॉन्सेप्ट लाया दुनिया भर में, DPP4 इनहिबिटर्स का। एक कंप्लीटली डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, डिफरेंट मैकेनिज्म एंड डिफरेंट फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स। इससे इसका इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, हमने पाकिस्तान में, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली खुद ये किया था ये काम, इसको लोगों को स्पेशली अगर हम बात करें, देखें स्पेशलिस्ट, अगर हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक डायबिटीज का एक स्पेशलिस्ट, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्योंकि वेल अवेयर होते हैं दुनिया भर में क्या एडवांसमेंट हो रही है, उनके पास इतना बड़ा चैलेंज नहीं था हमारा उनको ये कॉन्सेप्ट सेल करना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट डायबिटीज तो हर गली कोने में बैठा हुआ, कोने खुदरे में बैठा हुआ हर जीपी डायबिटीज को टैकल कर रहा है। उन तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाने की पहली जिम्मेदारी नोवार्टिस की थी, जिसके लिए there were a series of activities that we had planned. हमारा हमेशा मकसद यही होता था कि हम की ओपिनियन लीडर्स, KOLs डेवलप करें, जो कि अक्सर ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और रिनाउंड फिजिशियंस होते थे। उनको पहले हम बाहर भेजते थे, उनको वहां पे थरली ट्रेन करवा के लाते थे कि जी क्या है ये DPP4 इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट, ये किस तरह काम करेगी और ये किस तरह इनकी इसके अंदर किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और फिर उन्हीं फिजिशियंस और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को खड़ा करते थे एक फोरम ऑफ जीपीज के सामने, और वो उनको सादा सिंपल जबान में समझाते थे कि ये DPP4 इनहिबिटर यूज कैसे करने हैं आपने डायबिटीज के मरीजों में। देखिए मैं क्यों इतना इतना डिटेल में आपको ये बातें बता रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिलिबरेटली स्किप किया। Innovator companies are allowed to fairly compensate the huge investment costs incurred due to R&D. Dr. Ashfaq, yes, and it remains an honor because DPP4 inhibitors have revolutionized the diabetes management and the diabetes arena. इसके बाद अब और बहुत सारे क्लासेस ऑफ ड्रग्स आना शुरू हो गए। SGLT2 इनहिबिटर, स्पेशल मेंशन, have again been one of the best new innovations of the past decade in diabetes. लेकिन DPP4 इनहिबिटर्स ने वो कहते हैं ना कि डायबिटीज की अगर हम ओवरऑल मैनेजमेंट के जो मसाइल थे, I don't want to get into the details because there are a lot of details and we'll get detracted, लेकिन डायबिटीज मैनेज करना आसान नहीं था क्योंकि दवाएं अपने एक साइड इफेक्ट प्रोफाइल के साथ आती थी। DPP4 इनहिबिटर्स पहली दफा उन साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स के बगैर एक उसी लेवल का एफिकेसी या उसी लेवल के डायबिटीज मैनेजमेंट जो है हमने इंट्रोड्यूस की थी। And this is where a lot of people might have been saved, their lives might have been saved by the introduction of this concept. So काम की बात, important बात, इनोवेटर कंपनीज को इजाजत होती है कि वो अपनी दवाएं महंगी रखें। ये है असल मुद्दा कि along with the targeted therapies and immunizations, also a gift of this. Yes, innovator companies by all means, Yusra, are it's a wonderful blessing to have these companies, because अगर ये नहीं होंगी तो हम अपने existing regimens को improve नहीं कर सकेंगे. And there is always a room for improvement, especially when we talk of chronic diseases. ऐसी बीमारियां जिनके लिए हम कहते हैं कि जी
ये हम जड़ से नहीं खत्म कर सकते, लेकिन इनको हम मैनेज करके दे देंगे आपको। उन बीमारियों में देयर विल ऑलवेज बी अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज इवेंचुअली हमारा टारगेट यही है कि हमें जड़ से खत्म करनी है ये बीमारियां। We'll talk a little more about that also, कि जड़ से खत्म करने के ऊपर आजकल क्या हो रहा है। Biopharmas will kick in then. Okay, so bottom line, innovator companies R&D करेंगी। R&D एक बहुत महंगा काम है, ये हम आगे देखेंगे। साथ में रेगुलेटरी एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस करेंगी, बहुत महंगा काम है, आपको आगे पता चलेगा क्यों अगली चंद स्लाइडों में। एंड न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जी स्पेशलिस्ट को पहले बाहर भेजना है, उनको ट्रेन करना है, फिर उनको यहाँ पे बुलाना है, फिर पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में बैठे हुए डॉक्टरों को जमा करना है और उनको सिखाना है। ऑल ऑफ दैट कम्स एट एन एक्सपेंस, क्योंकि वो डॉक्टर इतना आराम से आते नहीं है। उनको अब वो आते हैं तो इसका मतलब है कि उनको एक अच्छा सा लंच भी देना है, लंच भी 3 कोर्स मील होना चाहिए, साथ में कोई एक उनको राइटिंग पैड भी देना होगा, वरना वो कहेंगे खाली हाथ भेज दिया हमें। And so on and so forth, that comes with a whole package of खर्चा। That is why innovator companies को इजाजत होती है, जब वो अपनी दवाएं बनाते हैं तो उनको इजाजत होती है कि वो इसको पेटेंट फाइल कर दें। We'll talk about patents in a bit. Okay, so Nimra is saying, what's the time frame to report Novartis? Okay, ऊपर sorry मैंने एक comment miss किया. Novartis is playing. I do not agree with the tenses of this line, Yusra. Novartis, let me just say, has played a great role in these. Yes. बाकी बातें बाद में. Okay, Nimra is saying, what is the time frame to report those side effects like during introduction? निम्रा बहुत डिट्रैक्ट हो जाएंगे अगर मैं अभी इस सवाल के जवाब देने लगा। प्लीज अलाउ अस टू पुट दिस इन अ पार्किंग लॉट। हमारा पार्किंग लॉट आई एम वेरी हैप्पी पॉपुलेट हो रहा है। यू विल गेट टू फाइंड द आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। टाइम फ्रेम फॉर रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट्स अगेन फार्माकोविजिलेंस के अंडर आता है, एंड वी विल कवर दिस टॉपिक इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन सब्सिक्वेंट सेशंस, सेशन 5 या सेशन 6। सो उसमें ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी। थैंक यू। राइट, इनोवेटर कंपनीज के बाद थैंक यू सो मच निम्रा। जो अगली बात है वो है जेनेरिक कंपनीज, और जेनेरिक कंपनीज इज व्हाट 85% of Pakistan pharmaceutical industry right now on 26 में है, if I'm not wrong, 2024। 85% पाकिस्तान की फार्मा मार्केट जो है वो जेनेरिक कंपनीज को बिलोंग करती। हमने अभी ये बात पहले भी कही कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज है। दैट्स जस्ट, मैं इसीलिए वो पहले वाला, प्लीज पहली स्लाइड याद करिएगा, डिस्क्लेमर। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इन माय पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग दैट इज हैपनिंग टू द पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री। Why do I say this? Because now we are forced to develop our own capabilities to produce molecules that we historically were unable to do. पाकिस्तान में बायो फार्मास्यूटिकल प्लांट्स की डेवलपमेंट इसी वजह से शुरू हो गई है कि आपके इनोवेटर कंपनीज बड़ी तेजी से श्रिंक कर रहे हैं और पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जिसके बाद मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। इंडिया मार्केट राइट नाउ हैज ऑलमोस्ट also 80 to 85% shifted to generic market. India is one of the strongest players in pharmaceutical industry in the world these days. इंडिया और चाइना ने, वो कहते हैं ना, उन्होंने मार्केट स्वीप कर दी है, जेनेरिक मार्केट। पाकिस्तान कैन बी द नेक्स्ट इंडिया एंड चाइना, अगर हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम इस अप्रोच को बस ले आए कि अब हमें गैप्स फिल करने हैं। हमें वो गैप्स फिल करने हैं जो ये इनोवेटर कंपनीज पीछे जो जा रही हैं उठ उठ के, वो छोड़ रही हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है।
हम बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं लोकल फार्मास्यूटिकल्स के साथ, हम उनके साथ फ्रीक्वेंटली बात करते रहते हैं, हमें पता है उनकी पाइपलाइंस में क्या है, एंड बहुत खुशाइंद है. I am specifically talking about the top 20 companies. I am not focusing on the remaining 780 companies, जिसके जनरली हम देख के पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री को लेवल कर देते हैं, मतलब लानतें देते हैं, गालियां देते हैं कि क्या सब स्टैंडर्ड दवाएं बन रही हैं, क्या हो रहा है. Of course, there is a lot of room for improvement in the quality of, say, company number 50 to company number 800 में. लेकिन the top 50 companies have achieved that level of quality of manufacturing excellence that has allowed our pharmaceutical industry to do amazing export growth in the past few years. हमारे एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में अगर और देखें किसी भी कंपनी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है इज ड्रिवन, मेन ड्राइविंग फोर्स इज कि हम यहां से क्या क्या चीजें बना के बाहर बेच सकते हैं. हमारी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत बुरा जो है वो इम्पैक्ट आया है इन द पास्ट फ्यू इयर्स फॉर वट एवर रीजन. अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट pharmaceutical industry is one industry that has done amazingly well in the past few years in terms of its growth in and the potential of growth in the export sector. ये रीजन है why मैं ये कह रहा हूं कि ये एक खुशाइंद चीज हो रही है, क्योंकि यस ये एक कमर्शियल गेम है, याद रखिएगा फार्मा इंडस्ट्री, और कमर्शियली 3 times from last fiscal year, talking about your company, Danish. Yes, I completely agree. And again, मुझे बाद में जरूर बताएगा आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं. But this has been the trend, I think, throughout in all the big companies, and that's an amazing thing too. And we must appreciate जो अच्छी चीज हो रही है. हमारे पास बहुत चंद अच्छी चीजें हो रही हैं. हम अगर उसके ऊपर भी उसको अप्रिशिएट ना करें तो फिर हम अपने साथ जाती करेंगे. Generic companies can't even match the efficacy of innovators companies, as there is a big difference in bioequivalence. Ahmad, I do not agree with this. I absolutely do not agree with this because bioequivalence studies अगर पास होती हैं तो ही एक्सपोर्ट की इजाजत मिलती है. अच्छा, बायोइक्विवेलेंस स्टडीज, सॉरी हम एक स्टेप आगे जंप कर गए, ये स्लाइड का लास्ट जुमला है. Let me come back, Ahmad, let me come back to your point. And I will come back to that point. Right. So, generic companies करती क्या है? Basically क्या करती हैं कि innovator companies, let's say हम DPP4 inhibitors की बात करते हैं, right? जिसकी हमने अभी एग्जाम्पल दी. एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नया मॉलिक्यूल आया, अपने साथ एक पेटेंट लेके आया. पेटेंट का मतलब क्या है कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट्स ने इजाजत दी है कि भाई अब ये दवा, ये DPP4 इनहिबिटर का ये जो आपका मॉलिक्यूल आपने बनाया है, ये मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ नोवार्टिस बना सकेगा फॉर द नेक्स्ट 8 years, 9 years, 10 years, 15 years, जो भी वो पेटेंट की ड्यूरेशन ऑन सेवरल फैक्टर्स डिपेंड करती है. इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज डिस्कशन. लेकिन पेटेंट का मतलब ये है कि इन अ कंट्री लाइक अमेरिका फॉर एग्जांपल, किसी और कंपनी को वो DPP4 का मॉलिक्यूल बनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि नोवार्टिस ने इसके पीछे R&D का खर्चा किया था, नोवार्टिस ने इसके पीछे रेगुलेशंस का खर्चा किया था, और न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग पे खर्चा अभी कर रही है. तो उनका इतना राइट बनता है कि कम से कम 7-8 साल तक उनको कंपटीशन ना मिले. इसलिए उनको वो दवा महंगी भी रखने की इजाजत होती है, और साथ में दूसरी कंपनियों के ऊपर ताले लगाए हुए होते हैं. 7-8 साल तक आप ये नहीं बना सकते, 10 साल तक आप ये नहीं बना सकते, जो भी वो पेटेंट का ड्यूरेशन. एक दफा पेटेंट एक्सपायर हुआ, उसके बाद जेनेरिक कंपनीज को इजाजत होती है कि अब आप इसकी कॉपीज बना दें. अच्छा, कॉपी बनाने में यूजुअली दवाएं सिग्निफिकेंटली सस्ती हो जाती हैं. इसकी वजह अब आपको समझ आ रही है, क्योंकि नोवार्टिस कभी ये क्लेम नहीं कर रहा होता कि जी ये दवा इतनी महंगी बन रही है.
उनको वो दवा महंगी बेचने की इजाजत इसलिए ताकि वो अपने R&D, अपने रेगुलेटरी प्रोसेसेस और अपने न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के खर्चे रिकवर कर सकें। हमें नोवार्टिस का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वरना नोवार्टिस अगले मॉलिक्यूल पे काम नहीं करेगा अगर उनके वो खर्चे रिकवर करने की क्या कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया आपने। डज दैट मेक सेंस? व्हाई इनोवेटर कंपनीज आर अलाउड टू कीप द प्राइस हाइक्ड अप? जेनेरिक कंपनीज देन उनकी एक शर्त होती है कि जी आप कॉपी बनाएंगे लेकिन आपने नकल जो है वो अकल के साथ करनी है। आपको उनकी शर्त होती है जेनेरिक कंपनीज की कि सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट उसी प्रोपोर्शन में शामिल हो जिस तरह DPP-4 इनहिबिटर नोवार्टिस का है, उसी की तरह का अगर लेट्स से गेट्स, पाकिस्तान की अभी सबसे बड़ी फार्मा ने कहा कि जी ठीक है हम इसकी कॉपी बनाएंगे। रामीन, थैंक यू सो मच। सो हम अगर इसकी कॉपी बनाएंगे, गेट्स को इसकी इजाजत मिलेगी, तो गेट्स को ये एक उनके ऊपर मैंडेट है कि वो नोवार्टिस जैसा ही जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट जिस मिकदार में नोवार्टिस की दवा में है उतना ही एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका जो है वो गेट्स की दवा में होना चाहिए। द सेम लेबल स्ट्रेंथ शुड बी यूज्ड। नोवार्टिस अगर 80 मिलीग्राम का बना रहा है तो गेट्स को इजाजत नहीं है कि जी वो अपनी तरफ से 50 मिलीग्राम बना दे, नहीं कर सकते वो लेबल्ड स्ट्रेंथ, अनलेस नोवार्टिस ने भी 50 मिलीग्राम कहीं और बनाई हुई है, राइट? डोजेज फॉर्म अगर नोवार्टिस ने never knew the reason behind this. Yes, a lot of people say this. So जो डोजेज फॉर्म अगेन है कि जी अगर नोवार्टिस ने एक कैप्सूल बनाया है, आई एम जस्ट सेइंग, तो गेट्स को भी कैप्सूल ही बनाना है। नोवार्टिस ने उसके जो फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्क्राइब किए हुए हैं अपने वो प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन लीफलेट पर्चे में, द सेम शुड बी डन बाय गेट्स एंड इट शुड बी प्रूवन कि वो ही एग्जैक्टली डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स है उस कॉपी दवा में जो कि ओरिजिनल दवा में थे। इस बात को प्रूव करने के लिए एक किस्म की स्टडी की जाती है विच इज कॉल्ड बायो इक्विवेलेंस स्टडी। सही? यू मोस्ट वेलकम जलील। बायो इक्विवेलेंस, अब द वर्ड इटसेल्फ शुड टेल यू कि हम इक्विवेलेंसी ऑफ टू कंपैरेटर्स देख रहे हैं। एक जगह हमने इनोवेटर रखते हैं, एक जगह हम जेनेरिक रखते हैं। दोनों को हेल्दी वॉलंटियर्स को खिलाया जाता है और हेल्दी वॉलंटियर्स का ब्लड ड्रॉ करके उसमें एग्जैक्टली कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड, कितनी परसेंटेज ऑफ दैट ड्रग ब्लड में आनी चाहिए थी, वो दोनों की मैच की जाती है। The accuracy needs to be 99% for a bioequivalence to pass. The trends for the curves have to be exactly the same. I'm saying trends, values nahi, trends should be exactly the same dosage, the same, and again so on so forth जो बातें ऊपर लिखी हुई है। ये स्टडी बेसिकली प्रूव करती है कि आपने एक अच्छी समझदार कॉपी बनाई है, आपने नकल के लिए अकल इस्तेमाल की है। और ये अगेन इस वक्त दुनिया भर के लिए एक लाइफ लाइन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। मैं एक और फाइनल बात करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो और दिखाता हूं ऑन दिस होल डिबेट ऑफ जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स। in a country like Pakistan, like India, like China, हम heavily populated countries हैं। ब्राजील, मतलब दुनिया के आप समझ लें कि टॉप 10 में 4-5 कंट्रीज ऐसे हैं। Sorry, मैं quickly just let me have a look at the comment of Nazish is saying, one reason but more concerning point is even competitor comes that is unable to get the place besides the fact that the quality is, the dynamics of the industry are seriously, maybe due to lack of competition. Prices are still very high after many years. You can look at the hormonal therapies in cancer, even patent period expire. डॉक्टर नाजिश अगेन देखें, ये वाले सारे वो पॉइंट्स हैं कि
जिसके अंदर मतलब वी कैन कीप डिबेटिंग अबाउट दिस के जी प्राइसेस हाई रखी जाती है इवन आफ्टर पेटेंट्स आर एक्सपायरिंग। अगेन देखें, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट इनोवेटर कंपनीज को लीगली ऑफिशियली कमाने की इजाजत दी जाती है ताकि वो अपने खर्चे रिकवर कर सके, पहली बात। दूसरी बात, आई कंप्लीटली अग्री विद यू डॉक्टर नाजिश, एंड यहाँ पे आई थिंक दानिश हैज गिवन दिस कमेंट कि यहाँ मतलब हमारी अगर हम जो सारी अभी इस वक्त करंट इंडस्ट्री ट्रेंड देखें, जिस तरह दानिश ने भी ये बात लिखी है, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन हमें अभी अपने जेनेरिक इंडस्ट्री को और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना है ताकि हम इनोवेटर कंपनीज के इन प्राइसेस को और नीचे लाने पे उनको मजबूर करें वंस द पेटेंट इज एक्सपायरिंग हैज एक्सपायर्ड। हम जब तक उनको वो कंपटीशन नहीं देंगे तब तक वो भी अपना प्ले, आई टोल्ड यू इन इंडस्ट्री है, इट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। फार्मास्यूटिकल्स कमाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए बैठे हैं। वो इंसानी खिदमत एक साइड में बाय प्रोडक्ट है जो कि बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन इनके डायनेमिक्स बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। लेट मी शो यू दिस वीडियो ऑन ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक। सॉरी, बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो कंप्लीट जो बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान, इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ब्राजील, जहां बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बड़ी है, बीमारियां बे इंतहा हैं और आउट ऑफ पॉकेट मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट नहीं पैसे दे रही हमारे हेल्थ केयर की, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इंश्योरेंस से पैसे बहुत कम लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे में ये क्या हमारी पॉपुलेशन के साथ ज्यादती नहीं है कि एक कोई बहुत जबरदस्त क्योर आ गया किसी बीमारी का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, लेकिन वो इतना महंगा है कि वो हमारी पॉपुलेशन के रीच से के बाहर है, अफोर्डेबल ही नहीं है। इनोवेशन तो बड़ी जबरदस्त हो गई, लेकिन हम बैठ के यहाँ पे सिर्फ देखेंगे उनको, क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते भाई थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की पर मंथ थेरेपी। उन लोगों को वहां पे शायद गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिल जाए, रिबेट्स मिल जाए, की वजह से यस पीपल कैन गेट एन इजी एक्सेस टू दोज ड्रग्स। बट हमारे यहाँ दिस इज अ जेन्युइन capitalism theory. Yes, this is exactly what I'm saying, Danish. It is a capitalistic world, a completely different argument, right? But thank you for saying that, Danish. This is exactly what I'm talking about. ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट में हम सबसे पहले ये बाय द वे ट्रेंड इंडिया और चाइना ने मिलके शुरू किया, और वो इंटरनेशनल कोर्ट में गए और उन्होंने उनको पिटिशन फाइल की। दिस वाज बैक इन 2005 2006 कि जी हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे लोग आउट ऑफ पॉकेट मार्केट्स हैं, अपने जेब से पैसे देते हैं, बहुत सारी माजरत आपकी इनोवेटर कंपनीज को हमारी तरफ से एक माजरत कर दीजिएगा, लेकिन हम आपके ये पेटेंट लॉज नहीं फॉलो करेंगे। हमें तो जैसे ही मार्केट में दवा आएगी, हमें बस सिर्फ वो दवा पकड़नी है, क्योंकि हम कॉपी करने के मास्टर हो चुके हैं। हम कॉपी बना लेंगे और हम अपनी मार्केट्स में ये कॉपीज बेचना शुरू कर देंगे। बहुत शोर मचाया इनोवेटर कंपनीज ने, नहीं, बड़े वो प्रोटेस्ट हुए और बड़े सारे बैनर्स लगे कि सेव R&D, सेव R&D और सेव न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। India and China said, sorry, our people are more important to us. Brilliant. पाकिस्तान फॉलोड सूट, हमने भी उसके अंदर जल्दी से अपना नाम डाल दिया और बहुत जबरदस्त किया हमने भी। मैं एज एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ MNCs जानता हूं कि MNCs के दिलों पे कितनी बड़ी छुरी चली थी, क्योंकि दिस वाज अ बिग हिट। बड़ी मार्केट्स हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। लोग चाहिए आपको, बीमार लोग चाहिए ना दवाई खिलाने के लिए, और सबसे ज्यादा बीमार लोग जिन ममालिक में हैं
वो ये 3 है और वो कह रहे हैं जी अब आप सॉरी आप रखें अपने पेटेंट लॉज अपने पास, हम तो अपनी कॉपीज बना देंगे पहले। it's a great move for us as Pakistani as and आप लोगों को अंदाजा होगा मैं 11 हफ्तों में कि मैं जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा पेट्रियोटिक हूँ। तो लेकिन as a patriotic Pakistani this is a brilliant thing that could have happened to us. Having said that, now comes the role of the national pharmaceutical industry के जी आप ये प्लीज खुदारा अपनी क्वालिटी को ना कॉम्प्रोमाइज करें, जो बीच में अभी दानिश एंड डॉक्टर नाजिश वर कमेंटिंग के जी क्वालिटी अभी भी कॉम्प्रोमाइज है। यस बट नॉट जनरलाइजेबल, अच्छी कंपनीज भी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, राइट। ऑन मैं स्क्रीन एक दफा फिर शेयर कर लेता हूँ प्लीज। एक्चुअली स्क्रीन पे करेंगे तो भी आ जाएगा ना, राइट। प्लीज हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Here are some quick facts about generic and branded drugs. It is a common misconception that branded drugs are more effective than generic drugs. Misconceptions range from manufacturing standards, they're weaker, to efficacy, the drugs don't work. The truth is that generic drugs work just as well as branded drugs. A quick comparison between a generic drug and a branded drug shows that a generic drug can appear different in terms of colors and flavoring, but the active ingredient is similar to that found in the branded drug. It is the active ingredient that determines the effectiveness of the drug. The inactive ingredients will not affect the overall performance, safety, and effectiveness of the generic drug. A generic drug is identical in strength, dosage form, and route of administration as that of a branded drug. If the branded drug is a capsule, the generic drug will also be in the form of a capsule. If the branded drug is taken orally, the generic drug will also be required to be taken orally. A generic drug will have the same use indications as that of a branded drug. A generic drug must have the same bioavailability and bioequivalence as that of the branded drug, i.e. the rate of absorption and extent of absorption of the amount of drug that was once ingested reaches the bloodstream. A generic drug must meet the same batch requirements for identity, strength, purity, and quality. A generic drug is manufactured under the same strict standards and processes as that of the branded drug. Branded drugs are way pricier because drug companies who have manufactured them have obtained drug patents, meaning that no one else in the market can produce or manufacture the drugs until the patents expire, which usually lasts between 17 to 20 years. Once the patent expires, other drug companies can start selling a generic version of it. Since generic drug manufacturers do not need to start manufacturing from scratch, the cost of manufacturing a drug becomes significantly cheaper. We don't need to pay for costly advertising, marketing, and promotion. According to reports, generic drugs save consumers an estimated $8 to $10 billion a year. Retail pharmacies, on average, the cost of a generic drug is 80 to 85% lower than the branded drugs. Knowing more about generic and branded drugs can help us make more informed choices with regards to our medication. In the long run, this can help to lower healthcare costs. For more information on generic drugs, do consult your family physician or doctor. Generic drugs, safe, effective, and low cost. हाँ जी, आई नो बहुत सारे लोगों को स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं उन लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। इतने बड़े दाने ओ सुप्रीम आगे भाई, सुप्रीम दानेदार, इतने बड़े कैसे सब सॉरी अबाउट दैट। कमिंग बैक टू नॉट सो सुप्रीम दानेदार, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि जी अभी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दानिश ने ये कमेंट भी किया था कि जी दे नॉट उतनी अच्छी नहीं है जेनेरिक जितनी के ब्रांडेड ड्रग्स हैं। do you see the there is always a quid pro quo, ये एक तराजू हमेशा ये ना ये मेरा हाथ यूं यूं हिलता हुआ आपको मेरे कम से कम बहुत सारे सेशंस में दिखेगा आगे फ्यूचर में। we have to weigh the benefits and the risks
associated with things that we are doing. The benefit of a generic drug is कि 8 to 10 billion dollars a year फार्मेसी के काउंटर पे सेव हो रहे हैं क्योंकि सस्ते ऑप्शंस मौजूद हैं. अगर तो वो दवा उतनी ही अच्छी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट उतना ही अच्छा है. मैं इसकी एक एग्जांपल हमेशा मैं हर सेशन में देता हूं, मैं आज भी देता हूं. एक डेयरी मिल्क आती है यूके से मैन्युफैक्चर होके और वो जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. मतलब हम सब ने एट वन पॉइंट और अनदर इन लाइफ बाहर की आई हुई चॉकलेट खाई हुई होगी कभी, राइट? तो डेयरी मिल्क जो बाहर से बन के आई हुई है, शायद हमारा एक मेंटल ब्लॉक भी है. मैं आई पर्सनली लाइक टू थिंक ऑफ इट एज अ मेंटल ब्लॉक, अ पर्सनल मेंटल ब्लॉक, कि जस्ट बिकॉज आपने 800 रुपए दिए हुए हैं उस बार के लिए तो आपको अच्छी लगती है वो, वर्सेस 80 रुपए की एक और बार जो कि उसी तरह लेबल्ड है, उसी पैकिंग में है, 19-20 वही टेस्ट है. यस आई एग्री कि थोड़ा सा वो उसके अंदर वो रिफाइननेस होती है, उसके मिल्क की स्मूथनेस शायद में भी ज्यादा हो, उसका कोको शायद थोड़ा सा और ब्लेंडेड हो, सो ऑन सो फोर्थ. एक जगह 80 रुपए में भी आपको वही डेयरी मिल्क का मजा मिल रहा है, ये बात हम कहें तो गलत नहीं हो. This is exactly the difference between the branded and a generic drug. If the drug has been manufactured according to the bioequivalence rules, which most of our top pharma companies are doing right now. This is why innovator companies are shrinking worldwide. पाकिस्तान में जिस तरह मैंने, अच्छा मैं अगेन एक क्विक फॉर योर रेफरेंस कि जी व्हेन आई स्टार्टेड द करियर, डॉक्टर अशफाक प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट it was a split of about 60 to 40%, or about a 50-50% split. 50% share was with multinationals, 50% shares were with national companies. In this small passage of 15-16 years, drastic shift towards generic. The reason being कि दुनिया भर में ये शिफ्ट हो रहा है और दुनिया भर में अब इस कॉन्सेप्ट को कैचअप किया जा रहा है कि जेनेरिक्स आर एज गुड एज ब्रांडेड, एंड द फैक्ट के द इनोवेटर कंपनीज are now focusing on the new pharmaceutical industry model, which is what I'm going to talk about in the next couple of slides. मैं टाइम बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि आई एम रनिंग अ लिटिल लेट, मुझे अब थोड़ा सा तेज करना होगा if I can, if you have to cover everything. Innovation and development recently in the beverage market is a good success. Yes, sir, a lot of innovations in the beverage markets are again done on the same premise. कि आप अपने तौर पर अब अगेन अभी आजकल रिसेंट आई नो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जी पेप्सी नहीं पीनी और 7 अप नहीं पीनी और मिरिंडा नहीं पीनी, तो ठीक है हम अपनी बना लेंगे. हाउ क्विकली वर वी एबल टू डू दिस? And this is exactly the same suit, the same trend that the pharmaceutical industry has been following, right? So now the recent shift has been from chemical based molecules to biological based large molecules. दुनिया अब इस चीज के की तरफ मूव करना शुरू कर चुकी है. MNC share was only 87% 25 years. Wow, 25 years back it was in absolute reverse. Today is the other way around. Thank you so much, Dr. Ashfaq, for sharing this, because this is exactly the point that we are trying to make here. आज से 25 साल पहले 87% शेयर वाज विद द इनोवेटर इन द मल्टीनेशनल कंपनीज. दवाएं इन्हीं की चलती थी और फ्री क्लीन स्वीप करते थे ये मार्केट्स. महंगी भी होती थी और आपको खरीदनी भी होती थी. बट नाउ दिस ट्रेंड हैज रिवर्स्ड. सो आजकल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मॉडल, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम स्मॉल केमिकल बेस्ड मॉलिक्यूल्स टू our own biologically based large molecules. मैंने जो टेक्सोल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की मैंने बात की, when you are starting to grow your own cell cultures,
That is the basis of biologically based large molecules. हमने डिजीजेस को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, हमें एग्जैक्टली अपने टारगेट्स पता है डिजीजेस के, लेकिन हमें उनके लिए वो कॉम्प्लीमेंटिंग दवाएं अब हम रादर देन हम नेचर में ढूंढें कि उस तरह का कोई हमें वो जो लॉक एंड की वाली वो के उस तरह की कोई चाबी मिल जाए जो उस ताले को खोले। हम अब इंसान ये कहना शुरू हो गए नेचर में तो होगी, पता नहीं कब मिलेगी, हम अपनी चाबियां खुद बना लेंगे, अब हमें सारे ताले खोलने हैं और हम अपनी चाबियां खुद बनाएंगे। This is the whole premise of the new biopharmaceutical industry model. We are now understanding the diseases really well, and we are creating the drugs rather to modify the diseases rather than to treat the symptoms only now. हम इस चीज से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि जी डायबिटीज के अंदर जो बढ़ा हुआ शुगर है हम उस शुगर को कम कर दें सिर्फ, मतलब अगर हम इम्पैक्ट देखें इसका, वर्सेस हम क्यों ना जाके सेल्यूलर लेवल पे उन सेल्स को ठीक कर दें जो इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। वी वांट टू मॉडिफाई द होल डिजीज रेजिमेन नाउ। टारगेटेड थेरेपीज की तरफ हम आना शुरू हो गए। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। A more holistic service approach rather than drugs only, trying to treat the symptoms or prevent complications. Complex macromolecules, एक जो मेजर फर्क है बायोफार्मा आजकल की रीसेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट और पुरानी इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, वो ये कि पुराने मॉलिक्यूल्स छोटे स्मॉल केमिकल्स होते थे। We've moved towards big macromolecular structures now that can help us address all our challenges in a much better way, जिसके लिए कई टेक्नोलॉजीज यूज में है। बी एब्सोल्युटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज सेशन के जी हम ये अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें या सेल फ्यूजन्स के ऊपर, जेनेटिक मैनिपुलेशंस होना शुरू हो गए। ऑल यू नीड टू नो इज कि कई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज हो रही हैं। What are the byproducts of these technologies? These are recombinant proteins that we are now making. हम अपनी genetically engineered vaccines बनाना शुरू हो गए, अपने monoclonal antibodies बनाना शुरू हो गए, nucleic acid based therapeutics, the notorious, infamous और famous आजकल की mRNA vaccines, the Pfizer vaccine. कोविड आया, 2 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई। कैसे आ गई इतने जल्दी वैक्सीन? It is through these technologies, because now in the next few slides we are going to talk about how the biopharmaceutical industry operates these days. और ये कोविड वैक्सीन पे मैं और भी बात करूंगा आगे। Right now it is a huge industry, 511.3 billion US dollars की industry, projected to almost double up in the next 5 to 6 years. ये है फ्यूचर अभी आजकल का फार्मा इंडस्ट्री का ही। दिस इज वेयर वी आर ऑल हेडेड। हम अपने mRNA टेक्निक से अब हम ये क्लेम करना शुरू कर देंगे कि हम अपनी डिजीजेस को खत्म कर जड़ से खत्म, थैंक यू, जड़ से खत्म करने की बातें शुरू कर चुके हैं। This whole we owe it to our drug discovery and development processes that we have developed now. अच्छा, ये historically drug discovery and development process labs में होता है, अभी भी labs में होता है, लेकिन ये बहुत long, difficult and it's a costly process, खर्चा है। इसीलिए इनोवेटर कंपनीज को इजाजत दी जाती है। आपको अभी आगे अप्रिशिएट करवाएंगे कैसे है ये खर्चा इतना बड़ा। सबसे पहले एक आइंस्टाइन के बालों वाला, बिखरे हुए बालों वाला साइंटिस्ट जो है वो लैब में बैठा है, वो अपनी जिंदगी के 35 साल उस डेस्क पे एक पेट्री डिश को दे चुका है जिसके अंदर वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि जी क्या रिएक्शन हुआ। मैंने एक केमिकल ए का 1 ml डाला, केमिकल बी का 0.5 ml डाला, तो उससे उसको जोड़ने के बाद क्या कंपाउंड्स बन के निकल के आए।
ओहो ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, 10 साल की मेहनत जाया हो गई सारी, जो है वो आपने जाके उन सारे वॉश बीकर्स को धो दिया, फिर वापस से शुरू किया। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट कि हमने उस बिखरे हुए बाल वाले आइंस्टाइन साइंटिस्ट को अब रिप्लेस कर दिया है हमारे स्मार्ट कंप्यूटर्स एंड रीडेबल libraries and technologies से। Thank you for saying that. Exactly what my next point was कि अब ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, जो पहले जमानों में सालों लगा देती थी जो चीज, अब उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एआई से। Thank you so much, Dr. Ashfaq. Yes, I know we need to have a break. I was just waiting for Chai to come upstairs. Out here, I would have announced the break. Sir, please allow me to complete these next 2-3 slides and then we'll take a break. Any case. So, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस हमने बहुत लीनियंट कर दिया है। और उसके बाद वाले नेक्स्ट, यस सर प्लीज जस्ट बेयर विद मी फॉर 2 to 3 minutes. Preclinical research, clinical development, and then reviews and post marketing. We will talk about all of this after the break. But ये है असल वजह जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि जी ड्रग डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सटेंसिव होता है। अगर 10,000 कंपाउंड्स ड्रग डिस्कवरी फेज में एंटर होते हैं तो उसमें से सिर्फ 250 कंपाउंड्स एंटर इनटू द प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज मतलब कि लैब से अब जानवरों में टेस्टिंग में आ गए। 10,000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 250 फिल्टर आउट होके यहां तक आते हैं कि लैब के पेट्री डिशेस से जानवरों में आते हैं। 250 कंपाउंड्स में से देन सिर्फ 5 कंपाउंड्स ऐसे निकल के आते हैं जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में आते हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर इनके ऊपर ट्रायल्स होते हैं। इन 5 में से अगर 5 मॉलिक्यूल्स फेज 1 में एंटर होते हैं तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल फेज 3 पास करके एफडीए अप्रूवल लेता है। Eventually this whole process on an average can take about 7, 6, 13 and a half, 14, 15 years. It can take, thank you so much. It can take about 15 years for a drug from that Einstein ke Petri dish to come to the market बाहर एक डब्बे में पैक हुआ compound. And what is most eye-opening and important fact is it on an average takes about $900 million. क्योंकि ये 10,000 कंपाउंड्स जो सारे फिल्टर आउट हो रहे हैं, हर कंपाउंड के साथ साथ $2 से $3 मिलियन कंपनी के जो है वो साथ साथ डस्टबिन में जा रहे हैं। उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स को वापस अलाइव करने के लिए मजीद $3 से $4 मिलियन खर्च कर दिए जाते हैं। इट टेक्स ऑन एन एवरेज अबाउट $900 मिलियन। अब आपको शायद थोड़ा सा दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आया इनोवेटर्स के लिए कि जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो फिर शायद उनको ये राइट है कि वो जब अगर इतनी मेहनत के बाद एक दवा आ जाती है शेल्फ पे इत्तेफाकन तुक्के में, तो उसको फिर महंगी बेचने दें उनको। This is the whole concept of why R&D is expensive, and then eventually मैंने आपको बताया कि वो खर्चे बहुत सारे और हैं। Right, we will take a break here. I know इसके हमें वैसे 2-3 स्लाइड्स बाद ब्रेक लेनी थी, लेकिन let's take a break here. प्लीज आई एम सो सॉरी, लेकिन आज का सेशन मेरे पास बहुत सारी बातें करने को होती हैं और मैं शायद ज्यादा बोलता भी हूँ, तो लेट्स टेक अ 10-minute break please, and let's resume the session at 5 minutes past 12.
Assalamu alaikum everyone again and 1 minute late लेकिन let's start please अभी से एक छोटा सा disclaimer कि मुझे शायद 5 से 10 मिनट ओवर ऊपर जाना पड़े because I don't want to rush through these next few slides. I want to spend because yeah, this is the crux of today's session, the last hour. Right. Now, हमने अभी तक अगर एक quick sorry before I move further, any questions, any queries so far on what we've done? I hope सबको सब चीजें अब तक जितनी हमने डिस्कस की हैं वो क्लियर है. जी, जी. on the basis of pattern, so अभी इस वक्त जो pattern को जो laws थे, so like we're not following them, right? Yes, so we have basically filed a petition in international courts. So India, China, Pakistan, Bangladesh has become a part. Brazil recently became a part. It became a. Let's not call ourselves third world countries because ये term अब जो है वो बहुत derogatory term समझी जाती है. Lower middle income countries कह लेते हैं हम. और हम lower middle income countries में आते हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं. So yes, ये patent वाली चीज जो है this has been very much in place and since there has been no clear outcome of those hearings, हमने इसको implement कर दिया है. नहीं, और ये बहुत जबरदस्त चीज की है हमने. मतलब it needed a lot of courage. Again, I don't want to get into politics, but I think this was one of the best things that Marhum Musharraf did for us. He was, I've seen him to have taken some of the best initiatives for the country in the past few years, despite the mistakes that he also made. Let's focus on the topic and move away from politics. Okay, but yes, आजकल की research activity for drug discovery. Now, हमने जिस तरह वो आइंस्टाइन की बात की और हमने उस वक्त ये बात की कि अब जो है वो ड्रग डिस्कवरी का पूरा प्रोसेस हैज कम टू एआई एंड हैज कम टू आवर एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी इन सच अ स्मार्ट वे कि हम अब एक एक्सपीरियंस अगर कहीं किसी ने कोई लिया हुआ होता है दुनिया भर में, मतलब लेट्स से अ साइंटिस्ट सिटिंग इन जर्मनी हैज डिस्कवर्ड समथिंग, तो वो उसके ऊपर एक मैंडेट बना दिया है कि उसको उठा के उस डिस्कवरी को एक फाइल बना के एक लाइब्रेरी में डाल दिया जाए, ताकि यूएस के किसी और कोने में बैठा हुआ एक साइंटिस्ट वही चीज के ऊपर अगर काम कर रहा हो तो उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये वाला काम तो वो मेरे जर्मन भाई ने कर दिया है. So I'll be wasting my energies on that and start the work from where the other person has left, right? This has literally made a significant improvement in the whole drug discovery process. वो जो initial हमारा time frame वो जो हम कहते हैं मैं पिछली slide पे जो मैंने दिखाया कि it takes about 6.5 years. COVID classic example took us 2 months for something in a petri dish to come to clinical trials. Well, not even to come to clinical trials. Took us 2.5 months to come to market. Took us 2 weeks for something on a petri dish to come to this stage. So, but it like needed to be pushed, right? Like of course. हर दवा के साथ ऐसा नहीं कर सकते. Yes, I've started recording, Dr. Nazish. So of course this is the whole thought behind it. That there were see whenever there is an emergency. अच्छा, मैं इसके ऊपर जब हम phase 1 पे बात करते हैं तो मैं उस पे please I'll come back to this point because emergencies के अंदर बहुत सारे rules and laws हम bypass करते हैं. The same applies to oncology studies, right? एक emergency है, कैंसर से मरीज मर रहा है, आप उसमें फिर इन छोटी छोटी चीजों पे नहीं रुक सकते. Immediately come to patients, फिर आप नहीं करते healthy volunteers और ये वाली सारी चीजें, right? We'll come to that. So आजकल का R&D process कैसे हो रहा है? We are doing target identifications and validations. Now, simple सी कहानी. Again, let me come back to the lock and key hypothesis.
क्लास 6 क्लास 7 की साइंस की किताबों से शुरू की है हमने ये वाली बात, और पूरे आई थिंक मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल तक लॉक एंड की हाइपोथेसिस हमारी जान नहीं छोड़ता। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या है? बॉडी के अंदर बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, उन तालों को हमें आइडेंटिफाई करना है। दैट इज योर दोस तालास आर योर थेराप्यूटिक टारगेट्स, राइट? Let's take an example. Again, let's take the example of diabetes because इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है। डायबिटीज के कई थेराप्यूटिक टारगेट्स आइडेंटिफाइड हैं। हमें ये पता है कि सेल्यूलर लेवल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो जहां से शुगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं, उस एंट्री पॉइंट को अगर आप बेहतर कर दोगे तो डायबिटीज बेहतर हो जाएगी। हमें ये पता है कि इंसुलिन जहां प्रोड्यूस हो रही है पैंक्रियास के अंदर, पैंक्रियास के अंदर कोई थेरेप्यूटिक टारगेट्स ऐसे मौजूद हैं जिसको अगर आपने ट्रिगर कर दिया तो बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर दे। हमें ये पता है कि गट के अंदर बहुत सारे ऐसे थेरेप्यूटिक टारगेट्स मौजूद हैं जहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड इवेंचुअली एसिमिलेशन ऑफ द होल कार्बोहाइड्रेट्स चल रही है। वहां पे आप फाइन ट्यून मॉडिफिकेशंस कर देंगे तो उसकी वजह से आपके डायबिटीज के कंट्रोल्स बेहतर हो जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। किडनी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज एक्सक्रीट करवा देंगे। द SGLT2 इनहिबिटर कॉन्सेप्ट आजकल का amazing concept, by the way. It's a brilliant wonder drug, SGLT2 inhibitor. जैसे स्टेरॉइड्स की जगह पेप्टाइड्स इंसर्ट करना शुरू कर दें। So we have lots and lots of therapeutic targets for a disease. हमारा काम क्या है कि हमें उन तालों की चाबियां ढूंढनी होती हैं ड्यूरिंग द ड्रग डिस्कवरी एक्टिविटी एंड द रिसर्च प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन दैट। ये ज्यादातर ये जो ताले हैं ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल बाय टारगेटिंग द DNA एंड द RNA और द राइबोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑल्सो। सो हम पहले तो हम सिर्फ सेल के इर्द गिर्द ऊपर नीचे चीजों में जो है हम घूम फिर रहे थे। नाउ वी मूव राइट टू द क्रक्स ऑफ द सेल, in the core, in the heart of the cell. We are moving to the DNAs and the RNAs, trying to target that genetic sequence now, which is what this whole new gene expression therapies is all about. जिस तरह मैंने कहा कि आजकल का जमाना है कंप्यूटर्स का, टेक्नोलॉजी का। वी नाउ हैव कंप्यूटर रीडेबल कलेक्शंस एंड लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज जो हैं ये हजारों 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 ताले और लाखों 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 चाबियों की लाइब्रेरीज हैं। Somebody wants to identify a lock for a particular disease. It is strongly advisable to now go to those libraries, look there closely. You will find something close to what you want to find, and then start your work. There are now proper computations available that can so there are simulations available that you can do on your softwares, ताकि ये लॉक और की को कौन सा बेहतर क्या फिट हो रहा है इसको अब आप पेट्री डिश में नेसेसरीली करने की जरूरत नहीं है। 3D मॉडल्स बना सकते हो अब आप। यू कैन हैव योर कंप्यूटेशनल मॉडल्स डन ऑन द स्क्रीन and decide on the screens कि अच्छा ये जो अप्रोच मैं देख रहा हूं या देख रही हूं ये is something that is worth bringing to the petri dish now. हम अपने वो 6.57 years को significantly shrink करते जा रहे हैं through these technologies. High throughput screening is another activity that is now कि इसके मैं example again मैं सादा जबान में बात करना चाह रहा हूं कि प्लीज आई एम simplifying all of this because this is absolutely beyond the scope of this the whole course. But you need to know to understand कि हम drug development से कैसे गुजरते हैं। High throughput screens ऐसे हैं, ऐसी इसकी example यही है कि बहुत सारे ताले आपने जो है वो लाइन से लगा दिए और आपके पास लेट्स से आपने एक यही चाबी आपने अपनी लॉक कर दी। मुझे चाबी तो यही यूज करनी है, इसका कौन कौन सा ताला है ये मुझे देखना है।
ताले लाइन से लगा दिए आपने एक सीक्वेंस में, Simulation. चाबी को सिमुलेशंस रन की, चाबी को आपने पहले ताले से लेके 1000 ताले तक सब में रन किया, पता चला 984 and 482 were the ones that were really good. उन दोनों को आइसोलेट किया, पेट्री डिश में ले गए, ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट शुरू की. The world is shrinking now and becoming an exciting adventure when it comes to R&D. 6.5 into 2 years, just like that. And into 2 weeks for COVID, for that matter, right? मतलब मैं कहूँगा ह्यूमैनिटी छा गई थी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, इतने जबरदस्त तरीके से R&D को एक्सेलरेट कर दिया गया when it was needed the most for the whole globe. Now, once you have the tala and chabis identified, then you go for your lead optimization activities. And this is now taking that same tala and chabi to the Petri dish. If you are doing it in vivo, that means you are doing it in cells. If you are doing it in vitro, then you are doing it in test tubes. विट्रो का टी से टेस्ट ट्यूब याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं. वीवो और विट्रो, मैं भी हमेशा जो है वो, आज भी सुबह आके मैंने एक नजर जरूर देखा है इसको, मैंने कौन सा वीवो था कौन सा विट्रो. some mind blocks that we have, right? I have always had this. और मेरा अपना वो तरीका ये है कि विट्रो में टी होता है टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब वाला इन विट्रो टेस्टिंग इज व्हाट इज नाउ ड्राइविंग द R&D rather than in vivo testing that usually historically used to be the driver. I hope what I've said is making sense. Can I move forward? Okay. Online participants हैं ना हमारे साथ? Please let me know if you have any comments, queries. Thank you. So coming back to this whole journey, then KG 3 to 6 years again, so that you'll get different versions of this, you know. 6 years, 6.5 years on an average takes a long time for a drug discovery and a preclinical process to run. Eventually उसके बाद एक IND submission का step है, IND investigational new drug. So जब आपकी पेट्री डिश में आपने एक कॉन्सेप्ट प्रूव कर दिया, या आप अपने लैब में आपने एक चीज को प्रूव कर दिया, फिर आप उसको जानवरों में कंडक्ट करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट निकालते हैं. जानवरों की स्टडीज को प्रीक्लिनिकल स्टडीज कहा जाता है. एंड वंस यू प्रूव दैट कि जी वो हमने जो टेस्ट ट्यूब में जो काम किया था वही सेम काम रेप्लिकेबल था जानवरों में, then you go to FDA. अब हम एक क्लासिक हम एक FDA को एग्जांपल रखें, because FDA files the most IND applications in the world by far. FDA में फिर एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है कि जी हमारी जानवरों की स्टडीज बहुत जबरदस्त, हमारे नंबर्स आ गए हैं. Long question, sorry, what's above that? All clear, thank you. So, sir, you mentioned computer simulation to view molecules, assuming that coding is required to develop this as clinical researchers. Would we need to learn? Yes. If you want to do this, you will need to learn coding. And again, biotechnology is now a very rapidly advancing field. There are a lot of specialized programs also available in Karachi for this. I know for a fact कि कुछ लोगों ने अभी अपना वो बड़े अच्छे simulation programs जो है वो start किए हुए हैं. Please talk to us offline for that if you need further help in that. Right. Please, coming back to this, मुझे पता है वक्त का मुकाबला सख्त होता जा रहा है. IND submission उस वक्त होगी जब आपके पेट्री डिश और आपके एनिमल मॉडल्स में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अलाइंड है. आप FDA के पास जाते हो, you submit an investigational new drug application. एक दफा आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, उसके I'll come in we'll talk a little more details on IND application in the next few slides. फिर आपको इजाजत मिल जाती है कि अब आप ह्यूमन यूज इसका शुरू करें. Only if it's approved, right? If it is approved, if your IND application is approved, and there are a few शराइत for it, we'll come to that in the next slide. आपको इजाजत मिल जाएगी कि अब आप ह्यूमन टेस्टिंग में आ जाए. फेज 1, फेज 2, फेज 3,
फेज 3 आपका कंप्लीट होता है और आपके तमाम प्रोसेसेस स्मूथ रहते हैं। हम इनकी डिटेल में बात करेंगे आगे। फिर आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। पहले आप इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग आईएनडी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जानवरों के बाद। ह्यूमन फेजेस से गुजरने के बाद फेज 3 तक अगर आपके रिजल्ट्स आपके एज डिजायर्ड है, you submit an NDA application that you are saying my investigational new drug has now, I want to remove the investigational word from there and I want to make that a new drug application. IND NDA बन जाती है। NDA जब बन गई और इसके अंदर फिर FDA अपना टाइम लेता है, यूजुअली टेक्स अ ईयर और सो फॉर द रिव्यू। 100,000 पेजेस, कम से कम 1 लाख सफात की वो एप्लीकेशन होती है। इतना बड़ा थद्दा जाता है कागजों का। इट इज रिव्यूड एंड इवेंचुअली देन इफ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, 1 से 1.5 साल में NDA एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं। योर ड्रग कम्स टू द मार्केट। दोस्तों कहानी वहां रुकती नहीं है, वहां उसके बाद एक फेज 4 की कहानी शुरू होती है, because phase 4 is a completely different ball game. We are now saying that a drug is in the market. We've claimed we've put our claims on the label. Now we are testing that on a larger set of population, on a larger set of diseased patients. And uncontrolled testing on special populations, further testing on drug interactions. कि जी हाइपरटेंशन की दवा है, लेकिन हाइपरटेंशन के मरीज यूजुअली तो एस्प्रिन भी साथ में ले रहे होते हैं। एस्प्रिन और हाइपरटेंशन की ये हमारी पर्टिकुलर दवा में आपस में तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इतने सारे खर्चे करके $900 मिलियन खर्च करके आप बमुश्किल एक चीज को शेल्फ पे लाए, उसके बाद भी बहुत सारी दवाएं विथड्रॉ हो जाती हैं जब वो फेज 4 में होती हैं। एकदम से वन फाइन डे पता चलता है, ओ सो सॉरी जी, ये दवा तो नहीं आनी चाहिए थी शेल्फ पे। ऐसा कई कंपनीज के साथ कई दवाओं में हुआ है। शुगर की बहुत सारी दवाएं जो हार्ट की दवाओं के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शुगर की खास दवा की जगह अब डेपा यूज की जा रही होती है। अच्छा मार्केट किया हुआ है किसी ने डेपा को आपको। बट यस, what you are saying in essentiality is a good concept. There are a lot of other examples. Depa was never made for heart failure. ये देखिए मैं डेपा जो शुगर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो हार्ट की कोई स्वाद वगैरह तरफ नहीं आती। मुझे शायद हमारे लोकल इंडस्ट्री के लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो मुझे मारना शुरू कर देंगे बाद में, सो लेट्स चेंज द टॉपिक। But yes, this is exactly in general what I am talking about. Diabetes की बात कर रहे हैं, one classic example here is pioglitazone. I think it's a wonderful example. Pioglitazone, what it has done basically is, sorry, so there are a couple of questions, I'll take them. Pioglitazone जो है वो insulin sensitizer है, so goes on the cell membranes and sensitizes the cell membrane all across the body to let sugar enter in the body. It was a revolutionizing concept because इससे पहले सारे जितनी दवाएं डायबिटीज की थी वो या तो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के ऊपर जो है वो फोकस कर रही थी, या इन वन वे और अनदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रही थी। This was the best insulin sensitizer that was introduced in the market. आया और छा गया था। It was literally like that. 2006, 2005, 2006, it was launched internationally. Pioglitazone, by the way, was one of the first molecules जिसके लिए पेटेंट वाली जंग भी हुई थी। ये इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ने पेटेंट वाले जो अपने वो वायलेट किए थे, वो पायोग्लिटाजोन वाज वन ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स इन द रेस। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में रेवोल्यूशनाइज हो रही थी डायबिटीज मैनेजमेंट। पायोग्लिटाजोन आल्सो वाज अ जापानीज टकीडा जो है मैन्युफैक्चरर, जापानीज, वन ऑफ द बिगेस्ट जापानीज मैन्युफैक्चरर्स, टकीडा की रिसर्च थी। सो बहुत सारे वो कहते ना कि आईब्रोज रेज हुए थे। हमारे गोरे बिरादरान को बहुत पसंद नहीं आया था जापानीज बिरादरान की इस रिसर्च को, तो देयर वाज अ कीन आई ऑन इट।
2011 US issued an FDA warning, black box warning, pioglitazone is causing bladder cancers. बंद करें इस दवा को, खत्म करें. Takeda ने बहुत सारा कमा लिया 6-7 साल में. Takeda became the Takeda that we know now because of that molecule in those 3-4 years. It was a blockbuster. But phase 4 ट्रायल्स के कुछ रिजल्ट्स में ये बात आई कि जी कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल है इस दवा का, ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स के कैंसर्स को प्रोमोट करता है. द ब्लैक बॉक्स वार्निंग शुड हैव बीन कि जी प्लीज इसको 65 एंड अबव की एज के लोगों के साथ थोड़ा सा केयरफुली इसका यूज ना करें. लेकिन this being a Japanese drug and a lot of other R&Ds, DPP-4 were lined up. हम ही इसको बेचने के लिए तैयार बैठे हुए थे, Novartis वाले, and then you know Merck and so on. Big giants had their molecules ready. DPP-4 was ready to come in the market. TZDs needed to be withdrawn. Black box warning लगा दी. बस अब ये किसी को नहीं लिखेंगे अमेरिका में. अमेरिका में नहीं लिखेंगे तो ये बात तो आग की तरह फैली पूरी दुनिया में. ओ ये दवा तो कैंसर करा रही है, बंद करें जिस जिसको लिखी थी सबकी प्रिस्क्रिप्शन वापस बंद कर दें. DPP-4 इनहिबिटर्स 3 महीने बाद लॉन्च हो गए. So this is a commercial war, remember this. But phase 4 studies by no means mean that you are through now. You can get some issues there that can literally just change the fortune of that drug. Right? Okay, quickly question. Does every investigational drug in any country will apply to FDA for NDA, or they are opt for their own regulatory body? Like, in a nutshell, the answer for this, Fiza, is that, no, sorry, this is Dr. Nazish's question. Dr. Nazish, in a nutshell, the answer is कि जहाँ पे ideally हर उस कंट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर अप्लाई करनी चाहिए एनडीए एप्लीकेशन जहां पे बेस्ड है द इनोवेटर कंपनी. दिस इज देयर प्रेरोगेटिव एंड देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. सो यूरोपियन कंपनीज, ईयू बाय द वे एक पूरा इदारा बन चुका है अब, ईयूए, यूरोपियन यूनियन एजेंसी. So tamam European countries run to the EUA for the first application, simultaneously also want to address FDA. American companies, Canadian companies are also doing the same, vice versa. First application to FDA, then rush to EUA, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक साथ रीइंबर्स मार्केट्स में एक साथ एक दवा जो है वो लॉन्च हो जाए, जल्दी से बहुत सारे पैसे बना ले. राइट. आई होप यहां तक की बातें क्लियर हैं. ओके, सो प्री क्लिनिकल स्टडीज, यहाँ पे हमें एक्चुअली ब्रेक लेनी थी, बट इट्स ऑल राइट. प्री क्लिनिकल स्टडीज नाउ, the salient features of preclinical studies is now we are talking about animal studies. Animals में बहुत सिंपल रखेंगे. देखें हम, now there are basically एक चीज है, the pharmacological profile of a drug. Animal studies में आपने pharmacological profile of your particular drug study करना है. What does pharmacological profile mean? Pharmacology हम सब ने जिन्होंने पढ़ी हुई है, सबने तकरीबन I know पढ़ी हुई है. We are talking about the pharmacodynamics and pharmacokinetics of the drug. Dynamics are कि उस ड्रग का ADME कैसा है. ADME से मुराद है how is the drug absorbed in the body. A for absorption, B then एक दफा absorb हो गई तो how is the drug distributed in the body after that, how is it metabolized and how is it excreted in the end. ये ADME एक कॉमन जार्गन है फार्मा की तमाम दवाओं का. एनिमल स्टडीज इसलिए हम करते हैं कि हमने जो पेट्री डिश वाले मॉलिक्यूल के आइडेंटिफाई कर लिया है कि ताला और चाबी तो परफेक्ट फिट हो रहे हैं, जबरदस्त. अब इनको जरा जानवरों में इसी मॉलिक्यूल को एडमिनिस्टर करके देखते हैं और ये देखते हैं
कि ये जो हम चाबी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर मौजूद तालों के लिए, ये चाबियों की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन इवेंचुअली कैसे होगी, उसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, ताकि ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे हो. So the ADME profile is primarily what you are aiming for in your preclinical studies. इसकी चंद शराइत होती हैं. I'll come to those in the next few slides. So basically पहला काम आपने pharmacological profile बनाना है, डायनेमिक्स एंड देन काइनेटिक्स अगेन के जानवरों के अंदर भी. लेट्स से आपने अगर डायबिटीज की आप दवा कर रहे हैं तो आप अपने लैब रैट्स को जो है जबरदस्ती का डायबिटीज देते हैं, उनके बॉडी में बहुत सारा शुगर डाल देते हैं, उनको डायबिटिक बना देते हैं और फिर देखते हैं कि जी फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि दवा का जो काम है वो शुगर को चूहे में उसी तरह कम कर रही है जिस तरह हमने पेट्री डिश में देखा था कि कम होगी. So basically your proof of concept of what you've done in the lab in the animals first time is preclinical studies. 3 शराइत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जो 11 हफ्ते बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि जी प्री क्लिनिकल स्टडीज में क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेगुलेटरी. कहां पे आप कहें कि जी जानवरों की टेस्टिंग हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी. फर्स्ट थिंग इज दैट यू नो द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल, यू नो द ADME एंड द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग. Second is you know the acute toxicity in at least 2 species of animals. एक्यूट टॉक्सिसिटी ये है कि एक ड्रग को किस हद तक आप कितनी डोज में दे सकते हैं कि जब तक वो बॉडी के अंदर पॉइजनस ना हो जाए, टॉक्सिक ना हो जाए बॉडी के लिए. तो लेट्स से एक दवा आपने बनाई है विद एन इंटेंशन कि जी मैं 10 मिलीग्राम्स पर डे इस्तेमाल करूंगा इस दवा को बॉडी में. एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी ये है कि मासूम चूहों के 4 पिंजरे आपने जो है वो असाइड किए. पहले वाले को आपने 10 mg के जो है वो आपने कैप्सूल्स उनको खिला दिए किसी तरह समा उनके खाने में डाल के, एंड देन यू ऑब्जर्व द ADME ऑफ द ड्रग. दूसरे पिंजरे वाले जो है वो उनको आपने 20 mg खिला के देख लिया. तीसरे पिंजरे वाले को 40 mg खिलाना है. आखिरी वाले जो है ना, जो जो चूहे आपको पसंद नहीं आ रहे और जिन जो आपको काट रहे हैं ना, उन सबको आखिरी वो ब्लॉक में डालें और उनको एक साथ लोड कर दें 80 mg डोज के साथ. एंड नाउ यू ऑब्जर्व एंड वॉच. अब आप जो है वो देखते हैं कि ओ 80 mg वाले तो मर गए सारे, एक ही दिन में ठीक हो गए. नहीं एक ही दिन में ठीक आपके 20 mg वाले हो गए, 10 mg वाले अच्छे हो गए, लेकिन और बेहतर ठीक अगले दिन हो गए. तो आपने कहा हाँ ये 10 mg वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो ये दवा वैसे भी 2 दिन खिला दी थी. बट 40 mg वाले जो है वो चाको चौबंद बैठे हुए मरे नहीं है. फियर तो खैर बट 80 mg वाले मर गए. सो नाउ यू नो 80 mg इज टॉक्सिक. आपने वो एक्यूट टॉक्सिसिटी डिटरमिन कर ली कि 80 mg इंसानों में नहीं जाना चाहिए. 40 mg वाला चूहा भी अलर्ट बैठा हुआ ऐसा ही है. तो आप कहेंगे माय मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इन एनिमल्स वाज 40 mg. मैं बीच में ऑब्वियसली वो 50 60 70 वाले पिंजरे अभी मैं गायब कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि 50 वाला थोड़ा लेथार्जिक हो गया था, 60 वाले बिल्कुल अधमुए हो गए थे, 70 वालों को जाके रिससिटेट करना पड़ा था, 80 वाले मर गए. So we know that the acute toxicity comes at 80. But 40 mg was the prime dose that was selected कि हाँ यहाँ तक चाको चौबंद बैठा हुआ था मेरा चूहा. This is the dose that I'm going to go up to in animal testing. I hope what I'm saying is making sense. This is poor rats. Yes, we all feel their pain, Dr. Nazish. Unfortunately, किसी को तो ये करना होगा क्योंकि ये you will appreciate in the next few sessions कि जब हम ये काम नहीं कर रहे थे तो हम इंसानों के अंदर किस तरह की तबाहियां करते थे.
ड्रग को बगैर टेस्ट किए इंसानों में इंट्रोड्यूस करने की वजह से। इवन कोविड में भी बहुत नुकसान हुए। कोविड को छोड़ देते हैं साइड पे, थैलिडमाइड डिजास्टर 1960s, there was 15 to 20,000 babies born without limbs because जानवरों में टेस्ट नहीं की गई थी दवा, और डायरेक्ट प्रेग्नेंट खवातीन को एंटी इमिटिंग बेसिकली एक एंटी नॉजिया ड्रग जो है वो मॉर्निंग सिकनेस के लिए डेवलप की गई थी। एम्ब्रियोलॉजी की किताबों के पहले चैप्टर की पहली जो खतरनाक तस्वीर एज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट या एज अ फार्मासिस्ट जब आप खोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी की किताब, तो पहली खतरनाक तस्वीर आपको बगैर लिम्स के बच्चे जो नजर आ रहे होते हैं, वो थैलिडमाइड डिजास्टर इज बिकॉज ऑफ दिस। कि ये हम डॉक्टर नाजिश चूहों को जो है के बारे में वी हैड डूई आईज, so we didn't want to do testing on animals. I'm sorry, I'm just taking this conversation further, but somebody has to pay. Thalidomide was a disaster. Yep. We'll talk more about thalidomide fourth session inshallah. Right, so acute toxicity key, and then conduct short term toxicity studies ranging from 2 weeks to 3 weeks. एक्यूट टॉक्सिसिटी तो ये कि वो जो पहली एक डोज कितनी कहां तक जा सकती है, 80 पे मर जाएगा, 40 पे चाकू चौबंद रहेगा, बट देन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप अगर आपने करना है, सो यू डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks, एंड दिस वेरीज ऑन द मैनेजमेंट दैट यू आर आल्सो प्लानिंग. So if you're planning therapy for a chronic disease जिसके लिए आपने for life किसी को थेरेपी देनी है, तो वो 2 weeks नहीं, वो फिर आप 3 to 4 months मिनिमम आप अपने जानवरों में टेस्ट करते रहते हैं. और आपने जितना ये शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी आपने जितना जहां तक टेस्ट किया हुआ है, उतनी आपको इजाजत मिलती है टू कम इन फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन टेस्टिंग. अगर आपने 2 weeks टेस्ट किया है तो आपको फेज 1 में सिर्फ 2 weeks तक ह्यूमंस में टेस्ट करने में. your hypothesis is that this needs to be given for life, तो आपको मिनिमम 3 साल तक फिर करना होगा. मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अ phase 3 trial is 3 years minimum, right? So based on this आपने अपना जो है एक टॉक्सिसिटी प्रोफाइल बनाया. सिंगल डोज में ये सारी अब बातें कर चुका हूं. एटलीस्ट, अच्छा जरूरी बात, एटलीस्ट 2 मेमेलियन स्पीशीज के अंदर ये काम होगा. तो सिर्फ आपके चूहे नहीं इसके लिए सैक्रिफाइस किए जाएंगे, कुछ मासूम से प्यारे से खरगोश भी जो है वो साथ में एक और पिंजरे में तड़प रहे होंगे. For a lot of other for recent diseases, it's the monkeys that need to be used, especially for the macrobiological molecules. There's a reason monkeys की physiology is closest to humans है. When you talk of macrobiological molecules, you must have a monkey in your labs. तो monkey बहुत महंगे हैं, थोड़े नहीं है, बहुत महंगे हैं ये वाले. मेन रीजन वाई मंकीज की जो है आजकल बड़ी डिमांड बढ़ती जा रही है. ओके, acute testing should usually be conducted using 2 routes of drug administration as well, right? अब basically point सारा यही है कि आपने अपने फार्म ADME को डिटरमिन करना है. पहले एक सिंगल डोज क्या ADME डिटरमिन करना है, एक्यूट डोज टॉक्सिसिटी स्टडी करनी है कि एक डोज 24 घंटे में कितनी देर तक जो है वो बर्दाश्त की जा सकती है. देन यू मूव टू एंड यू आर बेसिकली डूइंग ताकि आप अपनी सिलेक्शन कर सकें फॉर योर फर्स्ट डोज इन ह्यूमंस. फेज 1 में क्या डोज यूज करनी है, इसका फैसला आपकी एक्यूट टॉक्सिसिटी डोजिंग करती है. And then you move to repeated dose toxicity, in which you've basically taken out that same experiment on one dose and repeated that. अगर आपको 2 हफ्ते तक किसी को देनी है तो आप मिनिमम आपने 2 हफ्ते तक उन जानवरों को वो रिपीटेड 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg देते रहना है. 40 mg 40 mg 40 mg भी 2 हफ्तों तक देते रहना है, और 2 हफ्तों तक उनको चाको चौबंद रहना चाहिए फॉर यू टू से कि ये थ्रेशोल्ड था जहां तक हमने जो है हम कहेंगे कि एक्यूट टॉक्सिसिटी या एक्यूट पॉइजनिंग नहीं डेवलप होगी. 2 हफ्तों तक आप दे रहे होंगे तो आप देखेंगे
कि 80 mg वालों को तो आप छोड़ देना, वो तो पहले डोज में ही मर गए, लेकिन जब आप 2 हफ्तों तक देंगे तो आपको ये समझ भी आ जाएगा कि 70 mg वाले चूहे भी 1 हफ्ते बाद मर गए, 60 mg वाले चूहे 2 हफ्ते बाद मरना शुरू हो गए। आपने ये फैसला कर लिया नहीं हम सही थे 40 mg पे रुकने पे। Am I making sense to everyone? I hope। मैं मुझे पता है थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं अब, लेकिन please stop me, please let me know if everybody is with me. This is a very important point that we are discussing. Any questions, any queries, anyone? Okay, good. So जानवरों का हमें जो है वो टेस्टिंग में अब हमारे पास 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, जीनोटॉक्सिसिटी एंड नो सर मोहम्मद अहमद, व्हाट इज द नो फॉर? कि कोई सवाल नहीं है या कोई कुछ समझ नहीं आ रहा? आई होप इट्स द फॉर्मर एंड नॉट द लैटर। ओके, no question. Thank you so much, Ahmed. I'm very happy. So genotoxicity studies, and there is another thing which is carcinogenicity studies. अच्छा, ये जानवरों में करना बहुत जरूरी है, ये जानवरों में की जाती है, लेकिन ये IND एप्लीकेशन की शर्त नहीं है कि ये कंप्लीटेड हो। देयर इज अ रीजन फॉर दिस। इसके बाद आगे एक रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडी की भी बात करेंगे, इनकी शराइत नहीं है कि ये कंप्लीट हो। जो शर्त है वो मैंने आपको इस स्लाइड पे यहां दिखाई, ADME आपका कंप्लीटेड हो, एक्यूट टॉक्सिसिटी आपकी कंप्लीट हो, क्रॉनिक शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज 2 to 3 वीक्स, 2 वीक्स to 3 मंथ्स कंप्लीटेड होगी तो ही IND एप्लीकेशन का सोचेंगे आप। ये 3 चीजें अगर कंप्लीट है और ये बाकी चीजें आपकी ऑन गोइंग है तो भी आपको फर्स्ट इन ह्यूमन यूज की इजाजत मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी दवा पे क्या काम हो रहा है। कैंसर की दवाओं के लिए हम इतना इंतजार नहीं करते कि हम जीनोटॉक्सिसिटीज और कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज करें। लाइफ सेविंग थेरेपीज, acute epidemic conditions like COVID, we don't wait for us to think कि जी 1 साल तक रुकेंगे। 1 साल तक अगर हम उस पेंडेमिक में रुक गए होते इन दवाओं को लाने तक तो शायद 1 बिलियन लोग कम हो गए होते दुनिया से, the way the trends were, right? So you have to be a little smart about these preclinical studies, और ये वाली सारी चीजें with the passage of time इंसान ने सीखी है। जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका मतलब सेल्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे अपनी दवा का इम्पैक्ट जो है is not only for anti-cancer drugs, is also for acute emergency drugs, is also for pandemic drugs, Dr. Nazish, like we have recent examples in COVID. But yes, mainly for oncology drugs, because we don't have a cure और मरीज मर रहा है अगर ये दवाएं नहीं मिलेंगी उनको। सो जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज में आप जो है वो अपना जेनेटिक लेवल के ऊपर अपने लेवल टेस्टिंग करें। कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज इज द पोटेंशियल फॉर द ड्रग टू create to be a carcinogen या to cause cancer। पायोग्लिटाजोन याद रखिएगा, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज शर्त नहीं थी कि वजह से दवा मार्केट में आ गई थी और फेज 4 में आके जाके हमें पता चला कि नहीं जी। अच्छा, जब दवाएं मार्केट में आ जाती हैं तो ये पीछे इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज की कि अब आप अपनी ये जीनोटॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज नहीं शुरू तो हो चुकी होती हैं उसी वक्त, कंटिन्यू रखिएगा और हमें इनके रिजल्ट्स जमा कराते रहिएगा पीरियोडिकली एज एंड व्हेन यू नो समथिंग, राइट? So this is the reason why we have to be we have to make sure ke so we have to make sure that this is what we need to be constantly
in line for in your future submission of data, right? Genotoxicity and carcinogenicity studies. अच्छा, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर्स वाली ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप बस डॉक्यूमेंट कर दें और आप दवा मार्केट में लें, ताकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स आपको आहिस्ता आहिस्ता फॉर इयर्स करते रहने हैं और उसके अंदर फॉर इयर्स आपका डेटा अपडेट होता रहेगा. One other very important point is the reproductive toxicology studies. अच्छा, आप एक again I think all the pharmacists and doctors will appreciate one thing कि हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बहुत कम दवाएं मौजूद हैं. मेजॉरिटी दवाओं के लिए हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के यूज के लिए हम यही बात कहते हैं कि जी वी डोंट नो, हम उसको कैटेगरी एक्स लेबल करके आगे बढ़ जाते हैं. कैटेगरी एक्स इज कि वी डोंट रियली नो कि क्या होगा. सो कैटेगरी एक्स वाली दवाएं ज्यादातर नई दवाएं होती हैं. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, मेल टॉक्सिकोलॉजी का रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी करना रिलेटिवली आसान है, because you need to do those studies for 3 to 4 months, and then on one next generation offspring. बेसिकली देखें रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी कैसे हो रही है. आपके पास एक मदर और एक फादर गिनी पिग रैट है, ये यहाँ पे बने हुए भी हैं, चले इन्हीं की इन मासूमों की एग्जांपल ले लेते हैं कि जी ये मदर रैट है जिसके 2 बच्चे इसके साथ बैठे हुए हैं, राइट, एंड देयर इज अ फादर रैट. फादर एंड मदर रैट को सेपरेटली जो है वो स्टडी किया जाता है. उनके मतलब ऑब्वियसली यू आर स्टडीइंग द टॉक्सिकोलॉजी पोटेंशियल ऑफ द ट्रांसमिशन of your drug or your effects of that drug in the next generation, right? ये है reproductive toxicology. So आपने मदर एंड फादर को स्टडी किया, नेक्स्ट जेनरेशन में एक और मेल रैट को, मेल बेबी को स्टडी किया और आपकी डॉक्यूमेंट हो गई कि मेल टॉक्सिकोलॉजी रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी है या नहीं है. फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी के लिए यू हैव टू कंटिन्यू दिस फ्रॉम मदर टू द डॉटर offspring, to the daughter offspring third, to the daughter offspring third, fourth, to the daughter offspring fifth, to the daughter offspring sixth, seventh. 7 generations तक आप इसको स्टडी करते रहे तो आप प्रूव कर सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी का प्रोफाइल क्या है. This is why majority of the drugs इतना इंतजार नहीं कर रही होती. और ये 7 generations के बाद भी बीच में भी कहीं भी किसी भी generation में किसी भी एक भी रैट को थोड़ा सा भी questionable कोई impact आ गया के ऊपर आप कहेंगे ओ वी डोंट नो दिस, वी कांट बी श्योर. सो जो आपकी प्रेगनेंसी कैटेगरी ए कैटेगरी बी ड्रग्स हैं वो दवाएं हैं जो इन 7 जनरेशन्स गुजारने में आप 100% कॉन्फिडेंट थे कि कुछ भी फीमेल ऑफस्प्रिंग को नहीं हुआ. एंड इट इज सो रेयर कि ये 7 जनरेशन, बिकॉज कोई मामूली सी भी चीज आपको नुक्स नजर आ गया पे यू कैन नॉट से कि ये कैटेगरी है. That is another reason now for all those people who are involved in clinical trials these days and taking this course, अब आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि क्यों फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम हमेशा विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल को एक एक्सक्लूजन रखते हैं, या हम कहते हैं कि दे हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज वो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स नहीं बन सकती. दिस इज द रीजन, बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज टेक years and years. हमारी दवाएं मार्केट में ही नहीं आएंगी अगर हम ये 7 जनरेशन तक वेट करेंगे पहले.
सो माइट एज वेल ह्यूमन टेस्टिंग फेजेस के अंदर फीमेल्स ऑफ विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल उनको इसी शर्त के ऊपर इंक्लूड किया जाएगा ट्रायल में कि उनका कंसेंट होगा कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आप अगर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्शन डॉक्यूमेंटेड यूज करेंगी और आपकी इजाजत से हम आपको जो है फिर ये दवा देंगे, ओनली देन कैन यू बिकम अ पार्टिसिपेंट फॉर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स। दिस इज द रीजन व्हाई we have this shart ke ji women of childbearing potential will not get pregnant while they are participating in the trial. I hope this is making sense to everyone. Yes, it is. Okay, good. Are also required for an NDA even if the medicine is specifically related. Maheen, yes. If the medicine is related to pregnancy, then this is a must reproductive toxicology study. There is a reason why medicines related to pregnancy are there is a very shrunken number because it takes a very long time for this process to be documented. Right? So then IND application की तरफ हम आते हैं। IND application simple होती है कि जी आपका again ADME documented है, first in acute toxicity documented है, first dose toxicity documented है, repeated dose toxicity documented है। आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि जीनोटॉक्सिसिटी हम कर चुके हैं 2 हफ्ते की, उसमें कुछ नहीं हुआ। कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज चल रही हैं, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज चल रही हैं, मेल टॉक्सिकोलॉजी डॉक्यूमेंट हो गई है। FDA विल से आप शुरू कर दें फर्स्ट इन यूज ह्यूमन ट्रायल्स। एक FDA का रूल इसमें यह है कि विद इन 30 डेज अगर FDA ने जवाब नहीं दिया IND एप्लीकेशन का, तो इसका मतलब है कि आप शुरू कर दें, एक्सेप्टेबल। FDA अप्रूवल की तरफ जाने के लिए अब इसके बाद आप इन तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं फर्स्ट इन ह्यूमन यूज में। So IND should be updated at least annually, and you are basically documenting the chemical structure, how the drug works, animal pharmacology and toxicology studies, the manufacturing informations, and your ethical approvals. Ethical approvals पे बहुत डिटेल में बात सेशन 3 में होगी। जिस तरह मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक ICH GCP आपकी जान नहीं छोड़ेगा इस कोर्स में, इसी तरह एक GLP भी है जो कि गुड लैब प्रैक्टिसेस हैं। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हमने इंसानों के लिए बनाई हैं, गुड लैब प्रैक्टिसेस हमने जानवरों के लिए भी बनाई हैं। हम सबकी पूरी हमदर्दियां हैं उन गिनी पिग्स और उन मंकीज के साथ जिनको आजकल ज़िबा किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। Minimum smallest number of animals will be used to get the maximum amount of information, और किसी को खामा में जो है वो टॉर्चर नहीं करेंगे किसी जानवर को, उसकी भी मतलब जानवर भी इंसान है जो आजकल का मंत्र है, राइट? So then we come to our famous clinical trials, the first in human testing. Again, प्री-क्लिनिकल स्टडीज में हमने सिंगल एंड रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी डेटा जमा कर लिया, ADME डेटा, फार्माकोकाइनेटिक्स। सॉरी आई माइट बी मैं थोड़ा सा शायद टर्म्स इसमें मिक्स कर रहा हूँ। फार्माकोडायनेमिक्स इज द बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग, हाउ इट इज यूज्ड इन द बॉडी, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ADME। अगर मुझसे गलती से कोई कहीं वो इंटरचेंज हुआ हो तो प्लीज दिस इज व्हाट इट इज। जीनोटॉक्सिसिटी डेटा एंड कार्सिनोजेनिसिटी डेटा, ये सारे जीनोटॉक्सिसिटी 2 हफ्ते डॉक्यूमेंट हो गया, आगे का आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कार्सिनोजेनिसिटी हम शुरू कर चुके हैं, इसका एविडेंस जमा करवाएं और आ जाए प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट इन ह्यूमन यूज में। अब फर्स्ट इन ह्यूमन यूज में सबसे पहला है फेज 1। अच्छा, एक और चीज होती है फेज 0।
फेज 0 में का मतलब सिंपल सा, अगर सिंपल सादा जबान में बात करें तो फेज 0 में आपने सिर्फ एक हेल्दी वॉलंटियर को लिया और उसके ऊपर वही काम किए जो आपने फेज 1 में करने, उसको डॉक्यूमेंट किया और आपने देख लिया। मतलब फेज 1 में आप बेसिकली यूजुअली 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं और इनको आप उसी तरह एक्यूट डोज टॉक्सिसिटी स्टडीज इनके ऊपर कर रहे होते हैं। ये these are also frequently referred to the phase 1s as your safety studies। क्यों? क्योंकि अब आप पहली दफा वॉलंटियर्स, हेल्दी वॉलंटियर्स को ले रहे हैं। नंबर्स यूजुअली 20 to 80 लोग एक फेज 1 में जमा किए जाते हैं और उनको जो है 1 साल तक तकरीबन आप ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन इज 1 ईयर। सो आपके पास ADME डेटा आपके पास कलेक्टेड था जानवरों से, एक्यूट डोज टॉक्सिसिटी थी, रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी थी। आपने बेसिकली यही ADME, एक्यूट डोज टॉक्सिसिटी और रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी को पहली दफा इंसानों में टेस्ट किया फेज 1 में। हेल्दी वॉलंटियर्स जमा किए, 20 to 80 का इसकी सॉर्ट ऑफ अनसेड रूल है, अप्रोक्सीमेटली इतने आपने लोग जमा किए, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को लेट्स से 40 mg वाली एग्जांपल रखते हैं, एक ग्रुप को आपने 20 mg दिया, एक ग्रुप को आपने 40 mg दिया और आपने उनको जो है वो उनकी सेफ्टी फॉलो अप की और देखा कि हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर कोई अनटूवर्ड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। What you are basically gathering as an information from phase 1 is आप उस दवा का ADME और उसका acute dose and repeat dose toxicity इंसानों में पहली दफा डॉक्यूमेंट कर देंगे। टिपिकली वही बात कि जी सिंगल डोज स्टडीज हैं और आइडियली आपने जो इसमें अचीव करना है वो यही है कि आप वही डोज ग्रेजुअली इंक्रीज करके आपने मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इंसानों में डॉक्यूमेंट कर देंगे, राइट? एवरीबडी क्लियर? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आई होप यू आर विद मी। सब क्लियर है फेज 1 की बातें? थैंक यू। सो वंस दिस इज डन, then you are basically monitoring and evaluation of phase 1s is yes, thank you so much. So now you are basically continuing this effort in your subsequent studies and you basically determine कि जी आपने वो जो ADME, acute dose और repeated dose toxicities की थी, इसका अब आप फेज 2 में क्या आप जाने के लिए रेडी हैं कि नहीं? हमने अगर वो वाला आपको चार्ट टाइमलाइन वाला याद हो, उसमें हमने बात की कि जी 5 दवाएं अगर फेज 1 में आएंगी तो उसमें से सिर्फ एक दवा फेज 3 क्रॉस करेगी। इतना कुछ पीछे करने के बाद भी यहां पे आके भी दवा रुक जाती है, बिकॉज हम जो एनिमल्स में टेस्टिंग कर रहे होते हैं वही सेम चीज रेप्लिकेट यूजुअली फेज 1 में अगर नहीं होती हुई देख रही होती, द ट्रायल हैज टू स्टॉप देयर। You go back to the petri dish, not the animals, the petri dish, और फिर से अपनी R&D शुरू करें। इसलिए $900 मिलियन लग जाते हैं एक दवा को लाने में, राइट? So now if everything is rosy, just the way you want, phase 1 हो गया, अब आप phase 2 में आए। phase 2 में अब आपने क्या करना है कि जी अब आप the same thing now you want to, अच्छा फेज 1 जिस तरह मैंने कहा इज ऑल्सो कॉल्ड द सेफ्टी स्टडी, फेज 2 इज नाउ कॉल्ड द एफिकेसी स्टडी। अब आप प्रैक्टिकली लेट्स से डायबिटीज की दवा क्या हम काम कर रहे हैं, अब आप डायबिटीज के मरीजों में आ जाएं। हेल्दी वॉलंटियर से उठे हम फेज 1 से पेशेंट्स में आ गए और पेशेंट्स का एक छोटा नंबर ग्रुप लिया, 100 to 300 लोग यूजुअली पेशेंट लिए जाते हैं and these studies last for a duration of about 2 years. phase 1 1 साल था, 20 to 80 लोग थे। phase 2 में आप 100 to 300 पेशेंट्स पे आ गए और अबाउट 2 साल तक अब आप अपना वही काम करेंगे, लेकिन इसमें 2 ग्रुप्स में आप कंपेयर करेंगे। एक ग्रुप को आप प्लेसिबो यानी कि एक सिर्फ
चीनी या नमक की पिल देंगे, दूसरे ग्रुप को आप दवा देंगे, ताकि हम ये देख सकें कि अच्छा, अब इसमें एक बड़ा सवाल हमेशा ये आता है कि जी ये उसके साथ तो ज्यादती है, जिसको एक डायबिटिक को आप चीनी की पिल खिला रहे हैं या आप उसको नमक की पिल फॉर दैट मैटर खिला रहे हैं, तो उस डायबिटिक के साथ तो ज्यादती है, वो ट्रायल में फिर क्या क्यों पार्टिसिपेट करें? नहीं, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रूटीन केयर है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं फेज 2 में। सो लेट्स से ये एक एड ऑन थेरेपी अगर है, तो आप इसको एज एन एड ऑन ही ऐड करेंगे एक आर्म में, और दूसरे आर्म में वो एड ऑन नमक की पिल ऐड कर देंगे। डायबिटीज में यूजुअली एड ऑन ही हो रही होती है। डायबिटीज के बहुत सारे मरीजों को आप ऑलरेडी कह चुके हैं आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, वो इंस्ट्रक्शंस किसी की नहीं चेंज होंगी। मेटफॉर्मिन आप सबने खानी है, वो उनकी नहीं चेंज होगी। ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को मेटफॉर्मिन के ऊपर एक आर्म को जो है, अगर 80 लोग आपके 100 to 300 लोग हैं नाउ, सो 100 people are in the trial, 50 people will get the investigational drug, 50 people will get a salt pill over and above metformin जो वो ऑलरेडी खा रहे हैं। Everyone on the same page with me? Good. अब यहां पे आप अपनी थैंक यू माही, यहां पे अब आप अपनी वही ADME डेटा को मरीजों में चेक कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। और आप इधर अब अपने शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर रहे हैं। फेज 1 में भी आपके पास सेफ्टी डेटा कलेक्ट हो रहा था, आपको पता चल रहा था कि जी जब डोज बढ़ रही थी तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ मरीजों को कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स को पेट में दर्द की शिकायत की थी। इनवेरिएबली आपने हम सबका वो एक मंत्रा रहा है एज मेडिकल स्टूडेंट्स और एज फार्मेसी स्टूडेंट्स, कोई भी फार्मेसी का फार्माकोलॉजी के जवाब साइड इफेक्ट्स वाले जवाबों में जवाब ना होता है नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। प्लीज इन्हीं में से अगर कोई ऑप्शन है और कोई जवाब याद नहीं आ रहा ना, इन 3 में से मार्क कर दो, आंसर 70% ऑफ टाइम्स ठीक हो जाएगा। वो नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया यहां से आता है। ये फेज 1 स्टडीज की बदमाशी है कि जी ज्यादातर लोगों को नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया रिपोर्ट होगा ही होगा। यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है कि दे नो दैट दे आर इन एन एक्सपेरिमेंट, दे नो दैट दे हैव टू टेल समथिंग कि जी आपने कोई आपको कोई गोली दी है तो आप, हाँ मुझे थोड़ी सी मतली होना शुरू, नहीं मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द होना शुरू कर, हाँ नहीं मैं आज दिन में 3 दफा चला गया था। अब now this is something that you have to document as a side effect. ये इसलिए it's a common joke in the R&D field. Nausea, vomiting, diarrhea तो हर दवा का साइड इफेक्ट होना ही होना है। ये सारे इनके पीछे ही कारस्तानियां हमारे फेज 1 और फेज 2 के ये हेल्दी वॉलंटियर साहिबान और our colleagues, dear our esteemed participants, उनकी बदमाशी है ये। सो 100 से 300 लोग मरीज अबाउट 2 साल तक आप उनके ऊपर अपना फेज 2 करेंगे। एंड नाउ विद द फेज 2 यू हैव नाउ प्रूवन कि आपकी ये जो रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी का जो लेंथ थी जो आपने वहां पे प्री क्लिनिकल स्टडीज में रखी थी, रिमेंबर 2 वीक्स to 3 months मैंने कहा था, 3 महीने तक आपकी वहां पे वो जो बात प्रूव हुई थी, वो फेज 2 में मिनिमम आपका उतना डेटा होना जरूरी है। तो आप वो जानवरों वाली बात को इंसानों में प्रूव कर चुके हैं नाउ। एंड नाउ देन यू मूव ऑन टू, अच्छा वही बात कि जी ओनली अबाउट 1/3 ऑफ दीज ड्रग्स आर गोइंग टू पास फेज 1 एंड फेज 2। If they do, if they are fortunate enough to come to phase 3, then comes the big game. Then comes matrix research, then comes the CROs, then comes the global approach. 100 से 300 मरीजों में अमेरिका में ही बैठ के वो टेस्ट कर लेते हैं, वो हमारे तक नहीं आते। फंसते कहाँ है, क्यों आना है अब उनको हमारे पास? अब फेज 3 में इनको चाहिए 1000 to 3000 पेशेंट्स। और मजे की बात, सारे इसके सारे ट्रीटमेंट नाइव। हैदर अली, ट्रीटमेंट नाइव पे क्यों मैं चीखता रहता हूं? ट्रीटमेंट नाइव पेशेंट्स चाहिए।
ट्रीटमेंट नाइव मतलब कि ऐसे लोग जो न्यूली डायग्नोज डायबिटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई दवा नहीं एक्सपोज हुए वे। अमेरिका का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, यूरोप का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, चाइना का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वहां पे किसी को डायबिटीज डायग्नोज होने से पहले वो दवाओं की तरफ जो है ना वो काउंसलिंग शुरू कर चुके होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग रोडों पे घूम रहे हैं जिनको 15 साल से डायबिटीज है, उनको पता है लेकिन उन्होंने गोली नहीं खाई अभी तक। क्यों? क्योंकि वो जी वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नहीं जी, वो हमारे जो पीर साहब हैं वो उनका दम बड़ा काम कर जाता है, तो उसकी वजह से जो है हम मेरी खाला की शुगर ठीक हो गई थी, उनको वो 3 साल तक हमने दम करवाया था। तो मैं पिछले 6 साल से दम करवा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी भी शुगर वही ठीक करेंगे। हाँ हाँ, जगह जगह ये हमें रोडों पे लिखा हुआ मिल रहा होता है। And there are other Peer Saab. Yup. Did we say? Acha, sorry, there was a question before. Can I please finish this here? Bas I'll just need another 3-4 minutes and then I'll come to the question. So phase 3 में हम basically अब now we are moving. Sir, I really hope not because ये खानाओं को जो है ना, I'm so sorry to say this, जो है वो मैं चाहूंगा पर्सनली, मेरी जाती ख्वाहिश है कि ये खानाएं ठीक ना हो, ताकि हमारे लोग जो हैं वो एटलीस्ट व्हाट इज अवेलेबल टू अस इन द शेप ऑफ साइंस उसकी तरफ आना शुरू हो जाए। सो phase 3 1000 to 3000 patients, participants, and the nation needs good awareness, sir. There's no second thoughts to it, and they last about 3 years. अब हम बेसिकली वापस वो तराजू की तरफ आ गए हैं। द मेन आउटकम ऑफ phase 3 इज टू इवेल्युएट द ओवरऑल रिस्क टू बेनिफिट रेशो। इस दवा को देने के रिस्क या साइड इफेक्ट्स ज्यादा थे या इसका बेनिफिट ज्यादा था? This is what we are basically evaluating in phase 3s. Usually when a product comes to phase 3, आप phase 1 phase 2 में, क्योंकि phase 1 में आप उसके risks identify कर चुके हैं, phase 2 में आप उसके benefits document कर चुके हैं. So phase 3 is basically amalgamation of the results of phase 1 and phase 2, and now we are proving in a larger set of population of the same diseased entity that you are targeting, कि जिसमें आपकी दवा काम भी करती है और सेफ भी है। जरूरी नहीं है कि दवा के कोई हर दवा के साइड इफेक्ट्स होंगे। आप पानी का ग्लास किसी को पिलाएंगे, उसके अंदर भी साइड इफेक्ट्स डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन रिस्क टू बेनिफिट रेशियो इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिटरमिन। यस, साइड इफेक्ट्स हैं, यस, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, 4-5 लोगों ने हमें यहाँ पे भी बोल दिया है। सॉरी, अब 1000 से 3000 है तो 40-50 लोगों ने बोल दिया है, लेकिन होने दो थोड़ा नॉजिया, होने दो थोड़ी वॉमिटिंग, क्योंकि दवा ने जबरदस्त काम किया। HbA1c reduced from 9.5 to 7.5 in a passage of a year. दवा काम कर रही है। जलील ऐसे ना देखे, HbA1c शुगर के अंदर जो है इज अ मेजर के अगर डायबिटीज की दवा काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि HbA1c कम होना चाहिए बॉडी के अंदर, बैक टू नॉर्मल लेवल्स आना चाहिए। if a medication is working, that means कि आपके tests are coming in your favor. So the therapeutic balance, Danish, thank you so much for saying that, is what we are looking for. एक और चीज प्लीज, आज आप सब घर जाके, घर में कोई भी दवा पड़ी हो तो उसका वो कार्टन खोलिएगा और अंदर से वो प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन का पर्चा, छोटे छोटे 5 और 6 फॉन्ट में जो लिखी हुई बातें होती हैं, आज प्लीज मेरी आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है, एक दफा वो कोई भी दवा का वो पर्चा उठा के देखें। आपको मेरी ये चीखो पुकार वहां पे उस पर्चे में नजर आ रही होगी, एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में नजर आ रही होगी। आपको सबसे पहले उनका वो डेटा नजर आ रहा होगा जो उन्होंने प्री क्लिनिकल स्टडीज में डॉक्यूमेंट, वो लैब की बातें नहीं करते, उस पर लैब की बातें वो पहले टेबल में कर देते हैं कि उसका वो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका फार्माकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके मुश्किल से 3-4 नाम उसको शुरू में लैब वाले दे दिए। फिर वो पहली बात जो वो उस पर्चे में करेंगे, वो जानवरों की स्टडी की बात करेंगे, प्री क्लिनिकल स्टडीज की।
उसके बाद अगली बात जो लिखी होगी वो सेफ्टी डोज स्टडी फेज 1 की बात लिखी होगी कि सेफ्टी डोज में इस जगह पे ये प्रूव किया हमने। अगली बात वो लिखेंगे कि एफिकेसी इस डोज पे डॉक्यूमेंट हुई है। फेज 2 की बात करेंगे, फिर पर्चा लंबा होता चला जाएगा क्योंकि फेज 3 के रिजल्ट्स की बात करेंगे। फेज 3 में आप फेज 1 और फेज 2 वाली सारी बातें मजीद सॉलिडिफाई करते हैं, कॉन्क्रीट करते हैं, बट नाउ यू कम टू द तराजू, ओवरऑल रिस्क टू बेनिफिट रेशो। सो आप इस वक्त अपनी स्पेशल पॉपुलेशंस की को भी इंक्लूड करेंगे फेज 3 में। यू आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, आप कहेंगे कि जी मैंने बच्चों को भी अपने फेज 3 में शामिल किया था और बड़ों को भी, जीडियाट्रिक ओल्ड एज पॉपुलेशन को भी हमने शामिल किया था। हमने हेपेटिकली कॉम्प्रोमाइज मरीजों को भी शामिल कर दिया और हमने सो ऑन सो फोर्थ, रीनली कॉम्प्रोमाइज, किडनी जिनकी कॉम्प्रोमाइज हुई है उनको हमने शामिल किया। उन सब का थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज योर फेज 3। Once a phase 3 is done, that means that you've done the task. कि phase 3 के results आपके favor में आ गए हैं। अच्छा, there is also another thing which is called a phase 3B. Please allow me to come to this comment later, Ahmad. Let me finish this. We are already 12 minutes over. So phase 3B एक और चीज ये है कि जी अगर आपने let's say डायबिटीज की दवा पे काम कर रहे हैं, डेपा डायबिटीज के लिए दवा बनी, लेकिन साथ साथ पता चला कि यार इसका तो हार्ट फेलियर पे भी अच्छा सा इम्पैक्ट आ रहा था, तो एक फेज 3B चला दिया और उसके अंदर उसकी इंडिकेशन एक्सपेंशन कर दी। दैट इज फेज 3B इन अ सिंपल, इन अ नटशेल, राइट। इसमें हम आपको बहुत सारा रीडिंग मटेरियल देंगे। मैं अभी आज आपको सिर्फ काम की इंपॉर्टेंट वो बातें जो आपके जहन में नक्श हो जाएं, कौन से ट्रायल के फेज में क्या हो रहा होता है, कितने लोग होते हैं, क्या आउटकम होता है उस ट्रायल का, राइट। फेज 3 में वही रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी आपका सारे वो आपके डेटा सही तरीके से कलेक्ट हुए हुए हो, जो आपका फेज 1 और फेज 2 की डेटा की शराइत है वो सारी की सारी हो। एक इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड पे जो बहुत जरूरी है वो ये है कि फर्टिलिटी स्टडीज इन मेल्स लॉक हो चुकी हो। फेज 1 और फेज 2 में फिर भी 2-3 जनरेशन्स की जो है वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है। सो फर्टिलिटी स्टडीज इन मेल्स कैन बी लॉक्ड एट द टाइम ऑफ फेज 3 इनिशिएशन, तो ही मेल पार्टिसिपेंट्स को खुली इजाजत है फेज 3 के ट्रायल्स में इंक्लूड होने की। अगर ये चीज नहीं हुई तो फेज 3 रोक दिया जाता है। We've seen it happen practically in a couple of instances in the past 3-4 years in our company. What does this specifically mean? They are logged. Locked as in कि वो हमने बात की थी कि 2 जनरेशन की स्टडी हुई हो। So you know the father and then the first son's toxicology profile for say जितना भी ड्यूरेशन है 3 years लगे आपको वो जानवर से लेके फेज 3 में आने में। जैसे 1 साल यूजुअली आपका फेज 1 में लगता है, अबाउट 1 से 2 साल आपके फेज 2 में लगता है, 3 years लगे। 3 साल तक वो बाप और बेटा चूहा बिल्कुल ठीक था, ये डॉक्यूमेंट कर दिया आपने, तो आप फेज 3 शुरू कर दें। Does that make sense? Yes sir, we are about to end anyway. So repeated dose toxicity of female repeated dose toxicity of female non childbearing potential are again then only warranted to be included in the phase 3s if you have this documentation. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, right? So then NDA एप्लीकेशन, जिस तरह मैंने कहा कि IND से NDA का जो है वो शेप अप हो जाता है। ये एप्लीकेशन 1 लाख सफात के ऊपर शामिल मतलब it comprises of about 100,000 pages, can take up to 2.5 years for FDA to review this application. एक एक पेज का एक एक डेटा डिटेल में देखा जाता है और फिर अप्रूवल दिया जाता है एंड द प्रोडक्ट कम्स इन द मार्केट, द मॉलिक्यूल कम्स इन द मार्केट। कहानी यहां नहीं रुकती। इसके बाद जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि फेज 4 फिर हम करते रहते हैं।
फेज 4 में हमारा यही तराजू का बैलेंस जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से डिटरमिन हो रहा होता है, और इस फेज 4 में हम फिर स्पेशल पॉपुलेशन के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा फोकस कर रहे होते हैं, न्यू इंडिकेशंस के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। डायबिटीज की दवा को हार्ट फेलियर में वापस मजीद बार बार चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं और से भी कमा लेंगे। And eventually new indications are approved if the trial, if we find out something कि किसी और चीज के लिए, तो फिर उसको वापस, अगर आपको याद हो, फेज 3B में ले जाएंगे, एक और इंडिकेशन को रख के, और फिर उसको वापस उससे भी अप्रूव करवा लेंगे FDA। Last and final slide, the same slide. It is a long journey, but end of the day, when the molecule comes in the market, we can now be 100% sure that we did everything in our hands to make sure that we know the safety and efficacy of the particular molecule. असाइनमेंट आप लोग का सिर्फ इसी बात पे है, कोविड की आजकल, अच्छा ये पहला वाला तो जस्ट आप लोगों को मार्क्स देने के लिए है, लेकिन द असल क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो है वो बेसिकली ये है कि वी वांट टू नो आप लोगों के ओपिनियंस। कोविड के ट्रायल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और बहुत हर चीज जो है वो जल्दी 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 आ रही थी। अभी आपने देखा कि जी 15 से 16 साल उसूलन लगने चाहिए थे ये फाइजर की वैक्सीन को आने के लिए, 3 महीने में आ गई। What are your thoughts about this? Pros and cons of this? एक अच्छा, मैं अभी से आपको बताऊं, एक अच्छा आंसर इसका will give a balanced argument. We don't want a complete pro and a complete con answer. We request you to please introduce some balance in your arguments. This is how you usually approach questions like this. Respect the opinion of the other side as well. But then आखिर में एक बेहतरीन अच्छा जवाब तो ये होगा जो दोनों बात करेगा, बेहतरीन जवाब ये होगा जो कंक्लूजन में आखिर में आपका अपना थॉट देगा कि आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रो हूं और इन वजूहात से हूं, या कौन है तो ये मेजर रीजंस है कि मेरे ख्याल में ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑन दैट नोट अब मैं बोलना बंद करता हूं, प्लीज आप लोग बताएं if there are any questions. I'm so sorry, I know 18 minutes up. हम यूजुअली इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने का वो जो है वो हो रहा होता है पहले सेशन में। मैं इसलिए थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखने के लिए, आई थिंक दिस इज द कॉस्ट दैट वी हैव टू पे फॉर द फर्स्ट सेशन एटलीस्ट। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आप देखेंगे आगे के सेशंस में। आई प्रॉमिस मेरे आगे के सेशंस में इस तरह ऊपर नहीं जा रहा हूँ टाइम में इतना। Having said that, if there is anything, any question, any query, any comments, please let us know. Please let me also read a couple of questions that were asked in between. So there are many drugs available, just like xanthine. There is like doxycycline and bemiphylline, whose leaflet carry the information about its use in cardiac patients on risk benefit ratios and how HCP get this risk. मैं बहुत सारे अल्फाजों में गुम हो गया, सवाल कहाँ है अहमद? Then how HCP get this risk to benefit ratio and prescribe need and sites. So HCPs, इसीलिए हम ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जी की opinion leaders. Yes, Dr. Ashfaq, we will send all the reading material, we will send all the slides, we will share the video links. Thank you so much, Professor Kamran. Really appreciate your presence also. I've been told you're a principal investigator in a very renowned institute, sir. We are honored. Thank you so much. Jazakallah. Sorry, just to quickly come back to that question, कि how do we decide कि ये risk to benefit ratio as a physician क्या होता है? This is where I think these key opinion leaders play a strong role, because they are there to help the physicians in general under no limit, no word limits, please. They are there to share their experiences and to share their understanding of the of this tarazu. And this is where again international guidelines play a very key role. Because कोई भी नई चीज आती है तो वो गाइडलाइन में आते आते 2 से 3 साल लगाती है,
बिकॉज वो तहम्मुल से देखा जाता है पहले उसको कि उसका क्लिनिकल यूज कैसा शेप अप हो रहा है, एंड देन आफ्टर 2 to 3 years उन चीजों को गाइडलाइंस का हिस्सा बनाया जाता है. So I hope I've answered the question, Amar. This is such a vast field that if we talk about, yes, we can keep talking about, we will keep talking about clinical trials and the phases in the next 11. ये तो आज तो वो क्या कहानी आज तो शुरू हुई है, आज तो पार्टी शुरू आज तो पार्टी शुरू हुई, आज तो ट्रेलर था. ये चीजें बार बार रिपीट हो रही होंगी. थैंक यू सो मच राबिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिश. Yes, Yusra, inshallah, this journey is just the beginning and we'll continue this. I hope I haven't missed any questions. ऊपर अगर कोई है तो प्लीज हम ग्रुप इसीलिए ना सिर्फ अभी ये 11 हफ्ते, लेकिन we keep all the groups alive for the next whatever time. कभी भी at any point, anything, any question, any query that you have, whether related to this or unrelated to this, clinical research बस उसके अंदर हो, उस सवाल का के थीम में, we are here to help you to the best of our ability. We'll try to answer all the questions, and all the best for the journey ahead. Yes, thank you so much. फीडबैक प्लीज हमें जरूर दीजिएगा. अटेंडेंस प्लीज जरूर मार्क करिएगा. आप लोगों के साथ ग्रुप में अदनान ने अभी लिंक्स शेयर किए हैं. हमें फीडबैक जरूर दें और हमें प्लीज ये मत बताएं कि ये सब अच्छा था या वो हमें क्रिटिकल फीडबैक आप लोगों का चाहिए. हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस इज व्हाट वी वांट टू नो. फीडबैक आपका अनोनिमस होगा, डोंट वरी. हमें नहीं पता चलेगा और आपको नहीं आपको डरने की जरूरत नहीं. खुल के हमें फीडबैक दें. इसी तरह हम इस कोर्स को इम्प्रूव कर सकेंगे. So thank you very much on that note, and wishing you all a very happy and a good remaining Sunday. Thank you. अगले संडे को शारिब आपको तंग कर रहे होंगे सुबह 10 बजे onwards. And the last slide with the questions for the assessment.